أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ اللہ کل ہے. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ. ہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں مدینہ بک 8. ٹھیک ہے، اور لیسن نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 3. ٹھیک ہے، جی آپ کی جو بک 8 کا 3 لیسن ہے یہ صحیح ہے. تو جی یہ ہماری آخری بک ہے، اس کے لیسن تھوڑے لمبے ہیں لیکن یہ والا جو ہم پڑھ رہے ہیں چھوٹا ہے، اس میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے لسان القرآن میں کیا پڑھا تھا؟ ان شرطیہ پڑھا تھا نا، ہے نا. اس میں ہم پڑھے اذا شرطیہ. اچھا. اذا جی شرطیہ، اور اذا پتہ ہے نا آپ کو، یہ ظرف بھی ہوتا ہے، اس کو شرطیہ ظرفیہ کہتے ہیں. شرط تو ہاں ہوتا ہی جی. ہے، ظرفیہ بھی ہوتا ہے، ظرف بھی. اب ظرف کیا بنتے ہیں ہمیشہ؟ مضاف بنتے ہیں. مضاف بنتے ہیں، اس کے آگے مضاف الیہ ہوتا ہے. از بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ظرف بنتا ہے، اس کے آگے بھی مضاف الیہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جی اذکروا فعل معذوف ہوتا ہے. اذا جو ہوتا ہے نا، یہ ماضی پہ آتا ہے، زیادہ تر یہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی پہ ہی آتا ہے، اور ماضی پہ آ کے ماضی کے معنی کو مستقبل میں کرتا ہے. صحیح جی ہے. اور جی. اس کا جو جوابی شرط ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ شرط کے لیے آ رہا ہے نا یہاں پہ. ہوں. تو شرط کے لیے جب آ رہا ہے تو اس کے آگے جو ہے ماضی، وہ جملہ شرطیہ ہوگا، اور اس کا جی. جواب جو ہوگا نا وہ بھی ماضی ہی ہوتا ہے اکثر. اچھا. لیکن معنی کس کا دیتا ہے؟ معنی کس کا دیتا ہے؟ مستقبل کا دیتا ہے. مستقبل. لم ٹھیک. کیا کرتا ہے؟ ماضی میں لے جاتا ہے مضارع کو، ہے نا. جی جی. اذا کیا کرتا ہے؟ مستقبل میں لے جاتا ہے مستقبل. معنی کو. صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ معنی ہے، اس کو کہتے ہیں اذا شرطیہ ظرفیہ. اور یہ دونوں طرح کے معنی دیتا ہے. اور شرط کا معنی ہو تو شرط آگے دو جملے آئیں گے، ایک شرط ہوگی جواب شرط ہوگی. اب جی اس کا جو جواب ہوتا ہے نا، اس کے اوپر فا بھی داخل ہوتی ہے. صحیح ہے، فا داخل ہوتی ہے. لیکن ہاں، وہ بھی آج اس سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ جو ہے، اذا کا استعمال جملہ شرطیہ میں پڑھنا ہے. اور دوسرا جو ہے جواب شرط کا فا کا استعمال بھی پڑھنا ہے. دو چیزیں پڑھنی ہیں اس سبق میں ہم. جی. جواب شرط جب پازیٹیو ہوگا تو اس پر فا داخل ہوگا، جب نیگیٹو ہوگا جواب شرط تو اس پر فا داخل نہیں ہوگا. جی. یہ سارے جملے آپ نے لکھنے ہیں. اچھا، فا کب کب داخل ہوگا؟ سب سے پہلے تو جملہ اسمیہ آ جائے تو اس پہ فا داخل ہوتا ہے، نمبر 1. جی. اس کے بعد پھر کیا ہو؟ آپ کا فعل طلب آ جائے آگے، طلبیہ. کہتے ہیں نا طلب والے. اب طلب والے 3 فعل ہوتے ہیں، یا تو امر ہوتا ہے، یا نہی ہوتا ہے، ہمارے. یا استفہام ہوتا ہے. استفہام بھی امر ہی اس میں بھی طلب ہوتی ہے. ہاں اس جی. لیے تینوں کو ملا کے فعل طلبیہ کہہ دیتے ہیں نا. اچھا. تو یہ امر نہیں اور استفہام تینوں پر فا داخل ہوتا ہے اگر یہ جواب شرط کے جی طور پہ آئے. اور جملہ اسیہ پر فی، یہ سب چیزیں ہم نے پڑھنی ہے آگے. میں ابھی کلاس میں جی. اسٹوڈنٹ ابھی آ رہے ہیں تو میں اس لیے تھوڑا وہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، پچھلا والا جی. ریوائز کروا رہی ہوں. اذا ظرف ہے، شرط کے معنی بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ بھی آتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے. کثرت سے ماضی پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، معنی کو مستقبل جی. میں بدل دیتا ہے. اور اگر اس کا جوابی شرط نیگیٹو ہو تو فا نہیں داخل ہوتا. اب فا کن کن صورتوں میں داخل ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے. تو جتنے ہم نے جملے جی. پڑھے ہیں، جتنے بھی پیچھے پڑھے ہیں، ان میں فا داخل ہوا ہے. اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ کیوں فا داخل ہے یہ ہم نے جاننا ہے کہ یہاں کیوں. یہ آپ کا شرط ہے، حرف شرط ہے، یہ آپ کا ماضی ہے، یہ شرط ہے، اور آگے ایک جوابی شرط ہے، اس پہ فا آ رہا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کیوں کہا گیا ہے، کیوں لگایا گیا ہے یہ؟ آپ کو کیا فا لگتا ہے ہاں، فا کیوں ہے یہ؟ 3 چیزیں تو ابھی آپ خاص طور پہ یاد رکھیں کہ فا کب آئے گی. ایک تو جملہ اسمیہ ہوگا تو فا آئے گی. اس میں اب یہ آئے گا. جملہ طلب. اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ تو نہیں ہے.
लगता है आपको ये जुमला जी। इसमें है? दूसरा नहीं मैंने नहीं, कहा अहमद कि है तो। फिल हम्म, तलबिया जो है ना वो होगा, तलब के मानी होंगे, उसमें अमर भी आ जाता है, नाही भी आ जाता है और इस्तिफाम भी आ जाता है। अब आपको इसमें से क्या लगता है कि ये क्या है? ये अहमद लग रहा है ना, अमर लग रहा है। अहमद नहीं होता, अहमदू होता है, अहमद, अच्छा, अहमदू। अहमदिल्ला। हाँ, अब आपकी बात भी सही है कि ये अगर ये फेले अमर है तो जाहिर है इसके नीचे जेर आएगा ना, और वो जी। जेर था, लेकिन क्या हुआ, फा लगने से वो आपका हरकत गिर फहमदिल्ला, गया। अल्लाह की हमद करो। हम बयान करो, कुछ तलब किया जा रहा है आपसे, जी। तो इसलिए फा आई है। ठीक। ठीक है, अमर, नाही और इस्तिफाम। फिर अमर में क्या क्या चीजें होती हैं? तीन चीजें होती है, हुक्म होता है, दरखास्त होती है। फिर अमर के अंदर किसी को हुक्म जी। दिया जाता है, अमर में कोई दरखास्त, बड़े से दरख्वास्त की जाती है ना? जी। अल्लाह ताला से तो उतने हुक्म नहीं दे सकते ना अल्लाह ताला को। और तीसरी चीज उसमें ख्वाहिश होती है, तीन चीजें होती हैं, कोई भी ख्वाहिश की जाती है, तो ये तीन चीजें होती अस्सलाम है फिल वालेकुम। अमर में। वालेकुम अस्सलाम। तो ये ये जो आपने हम्म, बताया ना, हम्म, ये जो फेल का बताया, फेल तलबिया, हम्म। ये इसी में आता है अमर। अमर, ये नहीं, इस्तिफाम, तीन चीजें इसके अंदर। जब आप फिर तलबिया कह देते हैं, है ना, जी उसमें कुछ जी तलब किया जाता है। अब अमर में भी कुछ तलब किया जाता है ना, नाही में भी कुछ। अभी अमर में भी दो चीजें होंगी, एक तो फेले अमर होगा, एक लामे अमर भी होगा। अच्छा। लामे अमर में भी कुछ तलब किया जाता है ना। ये अलग बात है कि वो जी। गायब और मुखातब और उसके जो नहीं उसके है से उसमें भी रोकने का मतलब होता रोकने है ना, का मानी, रोकने। उसमें भी तलब होती है, और इस्तफाम में भी कुछ पूछा जाता है ना, कुछ तलब अच्छा। किया जाता है ना। हम्म, जी है ना, तो जी ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अमर में दो जी। चीजें आती हैं, फेले अमर आता है और फेले लामे अमर आता है। लाम अमर। इन ओके। दोनों में ख्वाहिश होती है, दरख्वास्त होती है, हुक्म होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो अभी इस चीज को सामने रखते हुए आपने रखना है, जो जो भी करना है। जी अब यहाँ देखें, जी। लामे अमर आया, इजा अतसा अहदुकुम, जब जी छींक आए, जब छींक आए तुम में से किसी एक को, फल या कुल, बस चाहिए कि वो कहे। तो फिर अमर है ना, ये लामे अमर है ना यहाँ पे। तो मैंने हाँ क्या जी। जी। कहा, तलब, लाम। है ना। जवाब जी शर्त जी। जब अमर होता है, तलब होती है उसमें, नाही हो, इस्तफाम हो या लामे अमर हो, तो उस पे क्या आता है, फा का दाखिला लाजमी। वल यकुल, ठीक है, वल यकुल लहू, और चाहिए कि कहे, यहाँ भी तलब है, यहाँ भी तलब है। अखूहू औ साहिबुहू यरहमुकुमुल्लाह, ठीक है ना, यरहमुकल्ला भी कह दे, दोनों कह सकते। अच्छा, तो ये फिर इजा शर्तिया आ गया, इजा काला लहू शर्त हो गई ना। अब यहाँ पर क्या है, जवाब शर्त, उस पे तलब आ गया, अब आएगी। तो इस तरीके से हमने करना है सबक को। दो चीजें याद जी। रखनी है, एक इजा, ठीक है, वो आपका जब माजी पे आएगा मुजारे का मानी देगा, शर्त का मानी देगा, उसके आगे जवाब शर्त होगा, और जवाब शर्त पे फा भी दाखिल होगी। और ये जी। सिर्फ तीन सूरतें नहीं होती, बहुत सारी, कद आ जाए, लेसा आ जाए, फिर नाकिस आ जाए, इस तरह की चीजें आ जाए ना, तो फिर आपका सीन सोफा आ जाए। देखा नहीं आपने, सीन सोफा पे कभी कभी फा लगी होती है ना। जी। 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 तो वो जवाब तसव्वुफ़। वालेकुम सलाम, वो जवाब शर्त पर सीन और सोफा आ रहा होता है। ठीक है, तो वो आप सब इंशाल्लाह इस सबक में पढ़ेंगे, तैयार रहे। और बहुत ही बेहतरीन शर्त और जवाब शर्त और इज़ा के साथ कंप्लीट लेसन है ये एक। जी। अच्छा जी, वो जो मैंने आपको जवाबी शर्त फा आने की जो बताई है ना, वो जरूरी नहीं है पीछे इज़ा ही शर्तिया हो। ठीक है, अच्छा। हाँ, उसके लिए जरूरी नहीं है, अभी हम इज़ा शर्तिया पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने लेसन कर लिया था, और अभी हम क्या करें, लेसन में सारा हमको बताएगा, सारे जुमले वो बताए गए थे जिनके ऊपर फा दाखिल हो रहा था। इज़ा शर्तिया था, मुमाजी पे दाखिल हो रहा था, और उस मानी किसका दे रहा था, मुस्तकमिल का दे रहा था, है ना। जी जब तुम सुनो, जब माजी में नहीं मानी आ रहा, जब तुमने सुना, जब तुम सुनो अनिदा आवाज, फकूलु मिस्ला मा यकूलुल मुअज्जिनु, फकूलु, तो फकूलु क्या है, फेले माजी है,
हाँ जी। नहीं, तुम नहीं फेल, नहीं, कुलू फेल कहो, अमर है। अमर है। अमर। अमर है, तो देखिए अमर पर आ गया ना तुम फा। खुद कहो। अब हर हाँ जी। जुमले को आप इसी तरह देखें और आपको पता चल जाएगा कि फा कहाँ कहाँ आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। सही है। तो सारी वजूहत तो शायद नहीं बताएगी, लेकिन हम इंशाल्लाह पूरी 8 9 वजूहत है वो पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पर आया, अब जुमला इसमिया आ गया, यहाँ पर फा दाखिल हो रही है ना। व इजा सा अल्लाह का माजी आ गया, इबादी अन्नी, ठीक है ना। अब अन आया साला के बाद, तो मीनिंग क्या होंगे? ता, अ, मेरे बारे में सवाल करे। वो तो मीनिंग होंगे ना, साला के क्या मीनिंग होंगे? साला के 2 मीनिंग बताए हुए मैंने। पूछना पूछना पूछना, असाला के ये बाद अन्ना का मतलब है पूछना। पूछना। और इसका मांगना मानी कब होता है? जब इसका अन नहीं आता, मांगना मानी अन्य। होता है। हम दोनों ठीक। सूरतों में सवाल, यहाँ भी सवाल कर लेते हैं, वहां भी सवाल कर लेते हैं। वहां मांगना मानी है जब अन नहीं आता, ठीक है। हम्म, और इसके हमेशा 2 मफूल होते हैं, ऑलवेज साला के 2 मफूल होते हैं, चाहे अन आए, चाहे पूछने के मानी में आए, चाहे मांगने के मानी में आए। दोनों सूरतों में इसके 2 2 मफूल होंगे। अब यहाँ पे देखें, पहला मफूल ये हो गया। अब इबादी क्या बन रहा है? ये बन रहा बात ही, ये मेरा बंदा। मुदाफ मुदाफ इलैह बन के मफूल बन रहा मफूल बन रहा है, है। मफूल नहीं बात बन रहा, मुदाफ फाइल बन मुदाफ रहा है। पूछने वाले कौन है? अच्छा, बंदे। पूछने वाले मेरे बन- बंदे हैं ना। बंदे। जी, तो हाँ जो जी। जो काम करता है वही है ना फाइल, और क्या है। अब इबादी, जब भी कोई लफ्ज या की तरफ मुदाफ मुदाफ होता है, तो फिर वो तो तीनों हालतों में एक ही जैसा होता है, आपने खुद पहचानना होता है उसको। ये फाइल में किताबी किताबी किताबी, इबादी इबादी इबादी, तीनों सूरतों में क्या है? एराब हिडन है। चलो। अब आपको पहचानना है, हाँ। मूसा मूसा मूसा, एराब हिडन है, तो कैसे पहचानेंगे? कैसे पीछे पहचानेंगे? देखना पड़ेगा ना हमें, कॉन्टेक्स्ट से। हाँ, अब जुमले का तर्जुमे से पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। व इजा साला का, और जब भी क्या करें, पूछें तुझसे, आपसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इबादी मेरे बंदे, मेरे बारे में। तो पहला मफूल तो यही हो गया, ये तो फाइल बन गया, सही है। तो ये दूसरा मफूल है, इस पे अन्ना आ गया। अब दूसरा मफूल जो बेचारा होता है, जिस पे सिला लगता है, वो पहला हो या दूसरा हो, वो क्या हो जाता है? मजरूर हो जाता है। तो ये दूसरा मफूल था, मेरे बारे में, लेकिन अनसिला आने की वजह से मजरूर हो गया। फ़इन्नी, अब इन्ना का इसम और दे इन्ना रहा। की जुमला इसमिया बन के फा दाखिल हो। ये पहला जुमला था हमारा सबक का, ठीक है ना। जी, जी, अच्छा, पहला था क्या था? ये हम ऊपर से पढ़ के आए ना। अच्छा, पहला जुमला हमारा था कि इजा अरदता अन तश्तरी मोजमन फश्तरी, तो तुम खरीदना, तलब आ गई ना, है ना। जी, अब ये फा जो है ना, ये जवाबी शर्त में नहीं आ रही। ये फाइन ना हूं का मतलब होता है बिकॉज, इसको तो निकाल ही देना। इन्ना का इसम, इन्ना की खबर, वो जवाब शर्त नहीं है वो। जवाब शर्त ये है, फश्तरी, बस तुम खरीदो ये वाली डिक्शनरी। जब भी तुम इरादा करो, माजी माजी पे आया, मानी क्या कर दिया? मुजारे में कर दिया। पहला मफूल क्या है? ये वाला। दूसरा मफूल नकरा आता है, वो ये वाला है, ठीक है। तो अब ये किस, क्यों 2 मफूल आ रहे हैं? यहाँ पे तो साला नहीं आ रहा, 2 मफूल क्यों आ रहे हैं? तश्तरी है ना, बाय करना, कि क्या बाय करना और क्या चीज, इरादे का। ये अरता है ना। हाँ, और इसको भी क्या थे? इसको भी 2 मफूल चाहिए होते हैं ना। किसने खरीदा, क्या खरीदा? हाँ, अन तशरी, तुम खरीदो, मोजमन, क्या खरीदो? एक डिक्शनरी। फश्तरी हादा, तो ये आपका हरफ शर्त हो गया, ये आपका फेले शर्त हो गया। ये उसका क्या है आगे? इसी फेले शर्त का फाइल, मफूल और दूसरा मफूल। ये पूरा एक ही जुमला है। मस्तर मुअव्वल। ये पूरा एक ही जुमला है। इस फेल के 2 मफूल आ रहे हैं, जार पे शर्त है और ये फेल शर्त है पूरा। ये शर्त, इसको शर्त भी कह सकते हैं आप, अच्छा, ठीक है। ये हरफ शर्त है और ये शर्त है। और आगे क्या है? फश्तरी हाजा। अब हाजा क्या बन रहा है यहाँ पे?
हाजा मफूल। मुस्तदा मफ मौका है। मंसूब है, मफूल बन रहा है। और हम्म, इश्तरी के अंदर या भी होती है ना, वो गिर जाती है आखिर में से। जब फिल अमर बनाते हैं तो वो या गिर गई हमारी। और शुरू में हमजा है, हमजा तो लगाया जाता है ना, फिर उस पे फा आती है तो वो क्या होता है, फा जवाब तलब पे आती है तो वो उसकी हमजा गिर जाता है, खाली हो जाता है, फश्तरी पढ़ते। बस तुम खरीदना, जवाबी शर्त है ये, जवाबी शर्त फा आ रही है। अब यहाँ पे ये जुमला खत्म हो गया, जवाबी शर्त। ये वाला शर्त था, ये जवाबी शर्त था। अब वजह बता दी कि क्यों तुम खरीदो, क्यों खरीदो, फइन्नहु मुफीदुन जिद्दन। इसको जवाबी शर्त वाली फा नहीं कहना, ठीक है। इसको जी। बिल्कुल अलग जुमला है, ये जुमला यहाँ पे खत्म हो गया, जवाबी शर्त। बिकॉज कहेंगे फिर, बिकॉज। हाँ, बिकॉज का ही मान देते ना, फइन्नहु। बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। वेरी यूजफुल। तो ये पहला जुमला था हमारा। दूसरा जुमला जो था, मंसूब भी, हम मंसूब भी पढ़ रहे हैं, नस्बी हालत। यानी क्या कहते हैं उसको, किसी चीज को किसी चीज से मंसूब किया जाता है ना। निस्बत। अब निस्बत। हाँ, या निस्बा। तो अब या निस्बा जो रिलेट। डिक्शनरी को किससे मंसूब किया जा रहा है, मदरसे से किया जा रहा है। मदरसे से। मदरसीयुन, मदरसीयुन का मतलब है मदरसे की डिक्शनरी है, ठीक है ना। मोजमुन मदरसीयुन, तो मदरसा होता है। अब इसकी गोलता गिर गई है, जब भी गोलता आएगी उसको गिरा के फिर या निस्बा लगाएंगे। तो या निस्बा क्या है, उस यानी डिक्शनरी को किससे निस्बत है, यहाँ पे मेरे का तर्जुमा नहीं करना आपने, मदरसे से। मदरसे की है। ये हाँ, ये जो ना इस डिक्शनरी को निस्बत किससे है, मदरसे से। तो यहाँ पे मेरा मदरसा तर्जुमा नहीं करना, जी। ये या निस्बा है इसके अंदर। तो और ये उस्ताजा ये जो जुमला है ये मुदाफ मुदाफ है हो जाएगा। मुदाफ मुदाफिल है, अच्छा। ठीक है। या निस्बा जब लगती है तो जाहिर है वो निस्बा ही है। हाँ जी। हाँ, जी। आपने उसकी गोल ता गिरानी है बीच में मदरसे की। अच्छा। अगर गोल ता नहीं आती, मक्का है, तो फिर आप ऐसे ही लगा दें। लेकिन ठीक। अगर किसी लफ्ज के आखिर में गोल ता आएगी, ये देखें, मदरसा था ना, ये गिरा के फिर हमने या निस्बा लगाई है, अच्छा। मदरसीयुन। जेर क्यों आ गई है, क्योंकि या को अपने से पहले जेर अड़ानी है। अब यहाँ पे ये या निस्बत वाली है, ये एक ही वर्ड बन गया है, ये मुजाफ मुजाफिला नहीं बनेगा, क्योंकि इसको अच्छा। जेर देने वाली कोई चीज नहीं है ना। ये मुजाफ के नीचे जो जेर आ रही है, ये इसके नीचे जेर क्यों आ रही है, क्योंकि आगे या आ रही है और गोल ता बीच में से गिर गई है। तो मदरसा होता है, जबर थी ना इसके ऊपर, मदरसा। मदरसा की गोल ता गिराई तो जब ये या निस्बा लगाई तो अब जेर उसने जबर को नीचे खींच लिया, मदरसी, यानी मदरसे की डिक्शनरी है। इसमें मेरे वेरे का कोई तर्जुमा नहीं आ रहा, ये एक ही है। जैसे बुखारी यून, तो बुखारी यून में या पाकिस्तानी यून में या लाहौरी यून में कहाँ से मुजाफ मुजाफ आ रहा है, बताएं। नहीं आ रहा ना। जी। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो मुजाफ मुजाफिन तो काकी का तर्जुमा होता है, सही है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ये सारा मैंने पढ़ा दिया था, अभी आज हमने सवाल जवाब करने हैं, फिर इंशाल्लाह आगे जो है ना, इसको करेंगे। फकुल, देखें, इजा जा आ, जब वो आ जाए, कौन लड़का आ जाए जो एब्सेंट होता है, फकुल तो उससे क्या ना, तो तलब आ गई, उसका फा आ गया, ठीक है ना। तो ये उसके ईज़ा ऊपर से आ रहा है। शुरू हुआ ना ये, ईज़ा से शुरू होगा। इजा से शुरू हुआ है, माजी आया है मुजारे में। जब आ जाए, हुँ। जब आ जाए फतहा, है ना, जब आ जाता है रमजान, तो क्या होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते। तो मानी बिल्कुल भी आपने माजी में नहीं करना है इसका। अब यहाँ पे भी देखें, जा जा फला तस्मा, अब नाही का आ गया। ये तो अमर का था ना, फकुल। और जी। लामे अमर का भी हमने देख लिया ऊपर, है ना। ये जी। लामे अमर का है, लामे अमर है, लेकिन इस पे वो दाखिल हो रहा है, फा नहीं दाखिल हो रहा है। ये वो वैसे ही दाखिल हो रहा है, ठीक है ना। और के मानी में फा जो है ना, ये शर्तिया होती है, शर्त जवाबी शर्त पे आती है, वो नहीं आती।
ये क्यों आ रही है? क्योंकि ये नाही है, नाही पे फा दाखिल हो रहा है, तो ये अमर पे हो रहा है। और यहाँ पे तो जवाब शर्त बन ही नहीं रहा, जो फा दाखिल करे ना, वो उस वजह से आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बता दिया फाइनी करीब। हाँ, इसमें आप देखिए, हाँ ये वाला जुमला देखिए, फुतियत इजा जा रमजानु, जब आ जाता है रमजान, फुतिहत खोल दिए जाते हैं अब्वाबुल जन्नती। अब जुमला फेलिया आया ना, तो जुमला जुमला फेलिया के बारे में तो मैंने नहीं बताया कि फा आएगी उसके ऊपर, है ना, तो उस पे तो नहीं नहीं आती। उससे तो ये मजहूल नहीं है फुतिहत। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मजहूल हो या वो, फा आएगी ये ना, तो जवाब ये तो शर्त पे फा नहीं, फा। मादी, जवाब इजा शर्त की तो फा वजह से। नहीं है ना, ये ये तो तो फा मादी है ना। ये तो माजी फा की दा तो हाँ मादी तो। फतह, ये वो वाली फा हाँ नहीं है, ठीक है। और जब जी, आपका ये जुमला, जवाब शर्त है। देखे मैं बता रही हूँ, जब जुमला इसमिया आएगा तो फा दाखिल होएगी, जब जुमला फेलिया आएगा तो फा नहीं दाखिल होगी। ये जुमला इस फेलिया है। इस और जुमला नाहिया होगा, नफी नाहिया को छोड़ दे, नफी वाला जुमला होगा। नफी और नाही में फर्क होता है। नाही जब होगा तो फा दाखिल होगा, जब नफी वाला जुमला होगा तो उसमें फा दाखिल नहीं होगा। तो ये सब चीजें हमने अभी अपने जहन में रख के सबको पढ़ना है। चलिए अभी सवाल जवाब करते हैं, कौन करेगा आके? फौजिया आई हैं? अस्सलाम आ वालेकुम। गई, क्या हाल है आपका फौजिया? ठीक है, मैं लिख रही अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए शुजा पढ़ चुके। हूँ। अजिब अनल असइलती अजिब अनल असइलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अमन सअलल मुराकिबु, मुराकिब यानी मुबस्सिर ने किससे पूछा? तो मुराकिब, सअला। मुराकिब का क्या मतलब होता है? निगरान जो भी होते हैं ना स्कूल में, है ना, जी निगरानी करने वाले, कौन आ रहा है कौन लेट आ रहा है, मुराकिब कहते हैं। असल में रा काफ बा रूट वर्ड किस चीज का होता है? गर्दन का, गर्दन का रूट वर्ड होता है। और इसके मुराकिब जो है वो जो निगरानी करने वाले होते हैं। रकीब भी होता है ना, जी रकीब का लफ्ज भी इसी से होता है। तो जी। अमन सअला, किस चीज के बारे में सवाल किया, मुराकिब किस चीज के बारे में नहीं आएगा। अगर किससे? चीज होता तो माँ होता, है ना। जी अम्मा। अम्मा यतसालुन, अम्मा यतसालुन, किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं। अब है किसके बारे में, किसके बारे में, यानी इंसान है, आकिल है, उसके बारे में। अब इसका जवाब क्या होगा, कौन है जिसके बारे में सवाल किया? सअला अनिल हुसैनी, हुसैन के बारे में सवाल किया। अन लगाएंगे और आगे क्या, अल हुसैन लगा देंगे। मुराकिब की जरूरत ही नहीं है, सा अल मुराकिब ये करने की जरूरत नहीं, बच्चों वाला काम है। सा अल्लाह, जी। अन, अन लगाएं अनिल और आगे क्या लगाएं? हुसैन, क्या अनिल ना, हुसैनी, इसके उस अल्तकाए साकिन है तो नून के नीचे जेर आएगी फिर। जेर आके अन। मिला। जी। बस ये चीजें आपको देखनी है। उसके बाद यहाँ पर, अम, माजा यहाँ पूछने का काला। मानी आएगा या मांगने का मानी आएगा? अमन में हम्म, अमन में किससे पूछा? किसके बारे में? अब अन का मतलब अबाउट होता है ना। अब किसके हाँ, बारे में? हाँ बारे में, बारे में मैं साला का मतलब पूछ रही हूँ कि पूछना आएगा या मांगना आएगा? ना। यहाँ पे पूछ, पूछना आएगा। पूछना आएगा क्योंकि अन आया है ना। जी सही है। और इसके दो मफूल होंगे, ठीक है ना। अब जब आप जवाब देंगी ना, अब यहाँ पे आपका अन आ रहा है, तो हमेशा इसके दो ही मफूल होते हैं। तो दूसरा मफूल बेचारा तो अन की वजह वो मजरूर हो गया ना। तो अब सवाल है, अब मन सा अलल मुराकिब, साला फेल है, मुराकिब फाइल है, और ये वाला जो है इसको आप मुताल्लिक बोलेंगे, किस के बारे में सवाल किया मुराकिब ने। तो आपने क्या जवाब दिया, सा अला अनिल हुसैनी, हुसैन के बारे में सवाल। अब हुसैन जो है वो भी आपका मजरूर हो गया अन की वजह से। जी। माज़ा क़ाल अल मुराकिबू, للمدرس बिन बिन्निस्बती इलल इब्राहीम। ल- हम्म, मुराकिब ने
अ, उस्ताद को क्या कहा इब्राहिम मुराकिब ने, कहने वाला कौन है, दम्मे के साथ आ रहा है। फाइल अंदर भी हो सकता है इब्राहिम लेकिन के इसमें बारे जाहिर फाइल आ रहा है। माज़ा क़ालत मुराकिबु लिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस से बी निस्बती इला इब्राहीमा। तो इब्राहिम के बारे में हाँ, क्या कहा, उसकी निस्बत के बारे में कही। यहाँ पे या निस्बा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर यह है जी कि इब्राहिम के बारे में उसने क्या कहा, क्या कहा। उसकी निस्बत से काला क्या। अनहु उसने कहा उसके बारे में, इजा जा जब वो आए, फला तस्मा लहू बिदखूली तो उससे क्लास में दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए। वल हम्म, यस्हब इलल मदीरी और चाहिए कि वो डायरेक्टर के पास जाए। दो बातें उसने कही थी ना उसके बारे में, इब्राहिम के बारे में। क्योंकि हाँ इब्राहिम जी। क्या था, डेली लेट हो रहा था, तो वो कह रहा था कि आज भी लेट है, उसकी आदत के मुताबिक। तो जब फिर उसने कहा कि जब भी वो आए तो फिर क्या करो, तुम उसको क्लास में दाखिले की इजाजत मत देना। तो यहाँ पे फला तस्मा ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था उसके पर। अभी यहाँ पे ला जो है नाहिया है, नफी वाला नहीं है। जब नाहिया होगा तो उस पे फा दाखिल होगी, जब नफी का होगा तो नहीं दाखिल होगी। अच्छा, उसके बाद मनिल्ला जियातसा। कौन छींका, हम्म, मन अतसक या किसको छींकाई। तो इसका होगा हुआ अब्दुल हादिया, अब्दुल हादी, हम्म, अब्दुल हादी को छींक आई। हम्म, हामिदल्ला बादल उतासी, क्या छींकने के बाद उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम्म। लालम यह आके जवाब में ला। लम हम्म, लालम यहमदुल्लाह हम्म, बादल उतासी, हम्म। छींकने के बाद उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। कौन सा बाब बनता है, हामिदा या हमदू। बाबिकाल। नहीं, सीन। सीन है। सामिया यस्मा। अच्छा हम अच्छा अच्छा। हामिदा होता है ना, ये हमजा जो आ रहा है ना, ये तो अन्ना यस जमीर का आ रहा है ना, मुजारे का हमजा है ना, अन्ना जमीर का। ये मुजारे है ना, इसको ना देख के आप अंदाजा लगाया करें कि ये बाब फाल है या ये है। माजी में जाके देखें, माजी हामिदा होता है। अब आप हामिदा या हमदू कौन सा बाब बनता है फौजिया, हामिदा या हाँ हमदू। हाँ, समिया बनता। मुजारे से नहीं पता चलेगा, आपको माजी के पहले सीगे में जाना पड़ेगा पता करने के लिए कि ये कौन सा बाब है। तो आप हमीदा करेंगे, फिर यहमदु मुजारे है। अब ये अगर ठीक। सेम सेम होता तो बाब हसीबा हो सकता था, ऑपोजिट आ गया, तो अब ये बाब समिया है। ये जो है ना जमीर का नहीं है, ये मैंने भी नहीं ये ये गलती की क्वेश्चन है। का है, हाँ क्वेश्चन ये का है। क्वेश्चन क्वेश्चन। का है। हमिदल्लाह, क्या उसने तारीफ की। अब ये हुआ किधर जा रहा है, मन की तरफ जा रहा है, जिसका आपने जवाब दिया है, अब्दुल हादी। तो क्या अब्दुल हादी ने हमद बयान की अल्लाह की, बादल उतासी, छींकने के बाद। छींकने के बाद। तो आपने कहा आ का जवाब ला में दिया है आपने। जी ला लम, मुजारे लगाएंगे, और मुजारे जी का मानी किस में चेंज हो जाएगा, माजी में। जी। नहीं, उसने लाल क्या किया, हमद बयान की। ला लम यहमद, यहमद, और जब मिलाएंगे आगे तो जेर आ जाएगी। यहमदुल्लाह। यहमदिल्लाह, अल्लाह पे जबर आ रही है। अ- अल्लाह पे जबर आ रही है, क्यों आ रही है, मफूल है ना, लफ्ज़ जलाला मफूल है ना, मफूल बन रहे, तो यहाँ पे भी मफूल ही बनना। बादल उतासी, सही है। अब खुद लिखें जवाब, कुछ उधर से मदद लें, कुछ खुद से बनाएं, पहले उर्दू में जुमला बना लें, पहले सवाल को समझें। अब देखिए मैं भी यहाँ गड़बड़ा गई, मैंने इसको अना जमीर का बता दिया, हालांकि ये क्वेश्चन के लिए आ रहा है। अहमिदल्लाह, क्या हमद बयान की अल्लाह की, बादल उतासी, और हुआ जमीर है, जब फेल भी होता तो फाइल भी होता है ना, तो फाइल किधर जा रहा है, मन की तरफ जा रहा है। अच्छा, जर्फ अब यहाँ से आपका शुरू हो गया इज़ा शर्तिया। अब इसको आपने गौर से सुनना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमारा सवाल मैं एक जवाब। सवाल पूछूं। बोले। ये हमीदा मफूल, ये हमीदा मजहूल है क्या, कुलिका की तरह। पेश किधर आ रही है, ये तो मजहूल। मजहूल नहीं है ना। मजहूल पे सबसे पहले पेश आनी चाहिए। पेश आती है हाँ। सही है, तब मैंने बस ये कंफर्म करना। तो कहाँ से आ रहा है,
हाँ नहीं, वैसे मजबूरी नहीं अब है। इसका मजूल बनाए, नहीं, बन नहीं सकता मिस। क्यों नहीं बन सकता? उम्मीदा। नहीं, क्यों नहीं बन सकता? मुतअद्दी फेल है तो क्यों नहीं बन सकता? लाजिम का नहीं बनता। इसको हटा दें, को ये खत्म हो गया। हाँ, हामिद, हाँ, तारीफ की गई बनेगा मिस। हाँ तारीफ की गई। हामिदा, जी। उसने तारीफ की कि तारीफ की गई अल्लाह की, तो हुमिदा हो जाएगा ना, जी। फुइला के वजन पे। और जो मजहूल होता है वो हमेशा किसका बनता है? मुतअद्दी फेल का। मुताद्दी अफ़आल का। हामिदा का तर्जुमा उसने हमद बयान की, तो अब क्या मुतअद्दी है कि नहीं है? है। है ना। उसने में तर्जुमा आए तो मुतअद्दी फेल होता है ना, वो में तर्जुमा जी। आए तो लाजिम होता है। लाजिम। जी। हाँ, ये बातें साथ साथ पूरी चलानी है ना। हम्म। हाँ, तो अब ये आपने कह दिया ये मजहूल है। मजहूल का तो सबसे पहले पेश आता है, फू इला के वजन पे आता है, तो हम ही दफा इला के वजन पे आ रहा है। समझ आ गई है? ठीक। जी आगे मिस। चल। अब इजा के बारे में पढ़ना है। इजा क्या है? जरफुन। तदम्मना भी पढ़ सकते हैं, तजम्मना भी पढ़ सकते हैं। जो शद होती है ना, इसमें थोड़ा सा प्रेशर डालना होता है। तदम्मना मा नशरती। इजा जो है ये ज़र्फ है, और मुतजम्मिन होता है शर्त के मानी में, जो मैंने बता दिया। इजा के दो मानी होते हैं, एक तो ज़र्फ होता है, एक शर्त होता है। यानी इजा ज़र्फिया शर्तिया कहते हैं इसको। ठीक है। अब तदखुलू दाखिल होता है गालिबन। गालिबन का मतलब क्या होता है? अक्सर। अक्सर। अक्सर क्या कब दाखिल होता है? अलल फेल माजी, यानी ज्यादातर। ज्यादातर गालिब का ये मतलब था। गालिब इम्कान ये है ना, कहते हैं ना, उर्दू में भी कहते हैं ना, गालिब इम्कान ये है। मुझे बताएं, कहते हैं कि नहीं कहते? यानी अक्सरियत का इम्कान, यानी इम्कान ये अक्सर इम्कान ये का मतलब ये होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम। गालिबन का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर तदखुलू मोस्ट, गालिबन मोस्ट ऑफ द टाइम को क्या चीज, क्या चीज? इजा अलल फेल माजी, माजी पे दाखिल होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इजा जो होता है वो दाखिल होता है। अब तदखुलू फेल क्यों आया है, मोनस क्यों आया है? क्योंकि इजा हर्फ है। ठीक है, हर्फ शर्त है, और जर्फ भी है, दोनों तरफ से है। तदखुलू गालिबन, गालिबन का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। फतुहव्विलूहु, फिर क्या करता है वो? तुहव्विल, बदल देते हैं। बदल देता है उसको, माजी को। ठीक है ना, फिल मायने में। माजी को फिल माना इलल मुस्तकबिली। अभी आपको ना ये तर्जमा करने की जरूरत नहीं है, फिर आप थोड़े दिनों में ना, या इंशाल्लाह ये आप इसको डायरेक्टली समझेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं ये उर्दू की तरह पढ़ रहे होंगे आप लोग। फतुहव्विलुहु, अभी तो मैं तर्जमा करके जो बता रही हूँ ना, कौन सा बाब बनेगा? तुहव्विलु, मुजारे माजी। अव्वला युहव्विलु हव्वला युहव्विलु, और ये क्या है? तहवीलन। ये हव्वला। तो हव्विलु बन जाएगा अच्छा, मुजारे। ये मजहूल है या क्या है? मारूफ है मजहूल फिर? नहीं, मारूफ है। मारूफ है। ये पेश जो आ रही है ना, मारूफ। ये माजी में चार लेटर होने की वजह से आ रही है। ठीक है, बाबे तफसील में। बाबे तफील से है। और ये तुहव्विलुहु फिल माना, ठीक है, अलल मुस्तकबिली, चेंज कर देता है उसको माने में मुस्तकबिल के। नहु या नहवा इजा जा रमजानु। अब इजा शर्त है, हरफ शर्त है, और जा क्या, ये रमजानु ये शर्त है। इस पूरे को मिला के भी शर्त कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हरफ शर्त, और ये समझे ये शर्त है। फेल है ना, फेल शर्त है। फुती फुतिहत, अब ये क्या है? मजहूल है। जी मजहूल है। ये मजहूल है। फुतिहत, खोल दिए जाते हैं। कौन खोलता है उसका नहीं पता। तो जब भी जी। फेल आप मजहूल देखें तो आगे मरफू इसम को क्या कहेंगे? साइड से। नाइबुल नाइब नाइबुल फाइल। 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 तो इसको आपने फाइल। फाइल नहीं कहना। अब नाइब वाबुल फाइल। जन, अब वाबुल जन्नती पूरा ही क्या बना दे नाइब। इसको? इसकी दो तरीके कभी से करते नाइब। हैं। हाँ, जब आपका यहाँ पेश आ जाता है ना मुजाफ पे, तो पूरे का पूरा ही मरफू हो जाता है।
अब ये ये पूरा पूरा नाइबुल फाइल बन जाएगा। नाइबुल फाइल बन गई। तो ये जवाब शर्त है, जवाब शर्त फा नहीं आई, नहीं आई। यहाँ पर इनको जवाब शर्त तो कहा है लेकिन फा नहीं आई। अच्छा, उसके बाद मैं भी इसलिए भी ना आई, मैं जब ये इतना शो नहीं कि दो फा इकट्ठे हो जाते तो शकल पैदा हो जाता। लेकिन अभी इन्होंने रीजन नहीं बताई, अभी आगे रीजन बताएंगे इंशाल्लाह। वह कद, कद का मानी क्या होता है? अब यहाँ कद जो है ना वो इस मानी में आ रहा है, कभी कभार के मानी में अलबत्ता के मानी में भी कर सकते। नहीं, अच्छा। समटाइम्स, तहकीक। ये समटाइम्स कद नहीं, तो नहीं नहीं, तहकीक का मानी आता है माजी पे। मुजारे पे जब कद आता है तो उसका मानी होता है कभी कभार, कभी कभी, कभी कभार। कद जो होता है, कद का मानी यहाँ पे अलग से कद नहीं समझना है इसको। कभी इसका मानी यहाँ पे कभी कभार आ रहा है। तदखुलू दाखिल होता है अलल मुदारिई, कौन? इज़ा। इजा, मुजारे पे। तो यहाँ पर कद, कद नहीं करना, यानी ये कद कुछ नहीं है, ये जुमला बना हुआ है। और उस मुजारे पे कद आ जाए तो उसका मानी होता है कभी कभार, दाखिल होता है अल मुदारी। व कजालिका यजूजु अन यकूना, और इसी तरह यजूजु जायज है अन यकूना जवाब शर्ती फेलन मुदारे अन। ठीक है, तो जवाब शर्त भी फिर क्या हो जाता है, वो भी माजी हो जाए, वो भी मुजारे हो जाता है। यानी इजा सिर्फ माजी पे नहीं आता, अक्सर तो गालिब इम्कान यही है कि वो किस पे दाखिल होता है, माजी पे दाखिल होता है ज्यादातर। लेकिन कभी कभार सम टाइम वो मुजारे पे भी दाखिल हो जाता है। और क्या होता है फिर उसका जवाब तो शर्त भी जो होता है वो फिल मुजारे होता है। जी। अब उसकी मिसाल क्या दे रहे हैं, कमाफी कौल शायरी व नफ्सु रागिबतुन। अब ये क्या है, जुमला पूरा इसमिया है ये, मार्फा जी। प्लस नकरा। नफ्स जो रागिब होने वाला है किधर, इजा, तरफ, रग, रगबता, हा, जो उसको रगबत करे, यानी जिस चीज की रगबत रखता है उसकी तरफ वो नफ्स रागिब होता है। रागिब होता है। इजा रगबता, जो चीज उसको मरगूब होती है उसकी तरफ वो क्या मांगता है, मोर 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 मोर। कनात नहीं आती इंसान में। अब किस चीज को उसने आप मरगूब रखा हुआ है, क्या किस चीज की तरफ वो रागिब है। आजकल आजकल ज्यादातर बच्चे जो है वो एडिक्शन है उनमें, हर वक्त हम्म। सेलफोन पकड़े हुए हैं, टैबलेट्स पकड़ी हुई हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ये देख रहे हैं, मीडिया। तो एडिक्शन, तो नफ्स को अगर एडिक्शन हो जाए तो फिर वो मोर 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 मांगता है, जिस चीज की भी हो जाए। वह इजा तुरद्दू, और जब, ठीक है, उसको लौटा दिया जाए, इल्ला कलीलन, ये मजहूल है वे, जब लौटा दिया जाता है इला कलीलिन, यहाँ पर हुआ अब की जमीर है तरफ। ना, तो हुआ जमीर जो है नफ्स है ना, तो हिया होगी। ठीक है, नफ्स की तरफ जा रही है ना, तो तुरद्दू क्या जी। है, वैसी मुन्नस का सीगा है, युरद्दू नहीं आया, तुरद्दू है। वैजा तुरद्दू, और जब उसको लौटा दिया जाता है, लौटाता कौन है ये नहीं पता, इला कलीलिन, तरफ किसके, कलील की अब तरफ। की। तक नाउ, वो क्या हो जाता है, कनात इख्तियार कर लेता है। कितना प्यारी, कितनी प्यारी बात है ना। और ये कनात इतनी बड़ी अल्लाह ताला की रहमत होती है। वरना आप देखें तो घर लिया है, अब उससे बड़ा लेना है, उससे बड़ा लेना है, उससे बड़ा लेना है, नहीं अब ये नहीं, अब ये नहीं, अब ये, उससे गाड़ियां हैं तो। अभी डॉक्टर फरत आशमी दिन कह रही थी, मैंने शायद आपसे पहले जिक्र किया नहीं, वो कह रही थी कि मैं अपने बेटे के घर गई तो बाहर एक बहुत बड़ी सी ना ब्रांडेड गाड़ी लगी हुई थी उसके घर के बाहर। तो वो बिल्डिंग में रहता है ना, तो मैंने पूछा कि ये किसकी गाड़ी है, इतनी मट्टी से हटी पड़ी है ये, और उसको कोई यूज भी लगता है बरसों से नहीं किया गया ना, और इतनी ब्रांडेड ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी। तो क्या कहते हैं, मेरा बेटा कहता है कि ये कुछ लोगों को ये होता है कि पता लगे कि हम कितने बड़े लोग हैं, हमारे पास ये वाली गाड़ी है, और हम उसको यूज भी नहीं करते, हमारी इतनी गाड़ी है। तो ये इंसान के अंदर हवस, मोर 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 की हवस, तो ये नहीं होनी चाहिए। जब आपके अंदर कनात आ जाती है तो ये इतनी बड़ी आपके अंदर वो है, थोड़ी सी चीज में बरकत हो जाती है। मेरे घर में लोग आते हैं, कहते हैं
आपके घर में इतनी बरकत नजर आती है। हम एक चीज लेते हैं, हमारी दूसरे दिन फट जाती है, दूसरे दिन खराब हो जाती है। हम आपके घर में बरसों से वही चीजें देख रहे हैं और वैसी की वैसी देख रहे हैं, कभी खराब नहीं होती, कभी नहीं होती, लगता है आज ही नहीं आई। इसको बरका कहते हैं और ये अल्लाह की तरफ से होती है। और इतनी कनात है हमारे अंदर, हमने कभी नहीं ख्वाहिश की कि हम ये चेंज कर लें, नया मॉडल लें। हमें वही चीज, और वो लेती हम, ये हमारी बात है कि हम जब पैसे खर्च करते हैं तो अच्छी चीज पे खर्च करते हैं। यानी जो एक हो लेकिन नेक हो वाली बात। एक एक हो, नेक हो। हम कहते हैं जूतों का जोड़ा भी एक हो लेकिन अच्छा हो। ये नहीं कि 10 ले और दूसरे दिन सारे के वो सोल जो है वो लागू है। वो वाली हिर्स नहीं है हमारे अंदर। तो अल्लाह ने इतनी अच्छी बरकत डाली हुई है ना। हमें घर चेंज करने का होता है। अभी बच्चों के कहने पे मैंने ये सोचा कि चले मैं घर बदली कर लूं, बच्चे बहुत अरसे से पीछे लगे हुए थे। तो वो भी मुझे पता है ना कितना काम करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमें जरूरत भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब कितनी चीजें मैं फेंक रही हूँ, ये कर रही हूँ, अगले घर में गैर नई चीजें होंगी सब। लेकिन ये है कि करना पड़ता है बच्चों के लिए बात दफा। तो ये सारी बातें, तो कनात अपने अंदर पैदा करे, इसको क्या कहते हैं, कंटेंटमेंट कहते हैं इसको। जिसको ये चीज मिल जाती है ना, वो किसी और काम की तरफ फिर काम का बंदा बन जाता है। लेकिन जिसका ध्यान हर वक्त ये होता है कि अब बाजार में क्या कौन सा फैशन चल रहा है, तो अब कौन सा चल रहा है, करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जमाने के साथ थोड़ा चलें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें वो कंटेंटमेंट आपके अंदर नजर आनी चाहिए। डू वो मोर मोर के लिए वो हिर्स नहीं होनी चाहिए। चले बात दूसरी तरफ चली गई है। यजिबू, आगे क्या होगा? यजिबु आ, यजिबुक तिरानु हम्म, जवाब शर्त जरूरी बिल नहीं होता, फाइल। अरबी अरबी में जरूरी नहीं होता कि मिलाएं। जब अलिफ लाम आता है तब मिलाएं, वरना आप कोशिश करें कि आपको इसमें भी आप सीख रहे होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, 1 2 3, थर्ड लेटर पे जेर आ रही है, आप जेर लगा दें। ठीक है ना? अब जब उसको पीछे से मिलाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, जब पीछे से मिलाएंगे तो ये गिर जाएगा, हमजा वसली है ये। ठीक है, तो अब यजिबु इक्तरानु हम्म, जवाब शर्त बिल फाइल फी मवादिआ मिनहा। मिनहा। अब क्या है, मिला, मिला होता है, इकतरानी का मतलब क्या है, मिला होता है, जरूरी होता है मिलाना, इकतरान। ठीक है, जैसे सुबहान, तो इकतरान जो है आपका, इकतरान नू है ना, तो मुजाफ भी जी बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये मुजाफ इलैह बन रहा है, तो मुजाफ हमेशा क्या होता है? मरफून। बस हमेशा मरफून नहीं होता, कुछ भी हो सकता है उसका नाम। इस्म तो होता जैसे है कि ना यहाँ पे मेरी फाइल। बहन, इस्म तो होता है ना। जी। जी मिस होता मुजाफ है। और मुजाफ इलैह हमेशा इस्म होते हैं। मुजाफ इलैह फिर भी जमीर हो सकता है, लेकिन मुजाफ तो हमेशा ही जमीर कभी नहीं बन के आता। और ये मरफू आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फाइल ये हो। जैसे यहाँ पे फाइल हो फाइल। जाएगा। जी यजिबू इक्तरानु जवाब शर्ती बिल फाइल, जवाब शर्ती क्या बन रहा है, ये मुजाफ है, ये दा- मुजाफ इलैह, और फिर जवाब शर्ती, फिर मुजाफ मुजाफ इलैह, पेचीदा मरकब इजाफी। पेचीदा मुरकबे इजाफी। तो ये पूरा आपका क्या बन गया, इसका फाइल बन गया। फाइल। बिल फा, ई फा के साथ, फी मवादी आ, जगहों में, मिनहा, यानी इन उनमें से कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर फा दाखिल हो सकता है। तो सबसे पहले आपका क्या है, ये जुमला इस्मिया आ रहा है, उस पे फा दाखिल हो रहा है। अब इसको पढ़ें फौजिया, अन यकूनल जवाबु। अन यकूनल जवाबु जुमलतन इस्मियतन नहवा व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन। और जब सवाल करे आपसे मेरे बंदे, तो बेशक मेरे अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी तो बेशक मैं करीब हूँ। बेशक मैं करीब हूँ। तो अब इसमें क्या है, अन यकूनल जवाबु, जुमला नंबर 1 क्या हो गया, जुमला इस्मिया। और जवाब, जवाब का मतलब है जवाब शर्त। जब जुमला इस्मिया होगा तो उस पर क्या दाखिल होगा, फा जरूर आएगा। अब आपको खुद फाइंड आउट करना है कि कहाँ तक शर्त बन रही है। ये पूरी शर्त बन रही है, ठीक है, ये हरफ शर्त है इसमें और ये शर्त है।
تو یہ دونوں ملا کے شرط کہلاتے ہیں، اور فعل شرط کہہ لیں تو پھر یہ دونوں مل کے شرط بن جاتے ہیں. فإنی، اور یہ جواب شرط اور جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ ان سے جو جملہ شروع ہوتا ہے تو فا لازم آئے گا. نمبر 2. أن يكون الجواب فعلا طلبيا ومن أنواع الطلب طلب الأمر والنهي ہاں، نحو اس میں استفہام بھی شامل کر لیں، لیکن ابھی یہ استفہام بتانا نہیں چاہ رہے نا، تو آپ اس کو جی امر اور نہیں کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں لام امر بھی آتا ہے، امر میں فعل امر میں بھی فعل امر بھی آتا ہے، اور لائے ناہی والے جملے بھی آتے ہیں. تو یہ 3 تو پکے ہیں. اس کے بعد نمبر مثال کیا ہے؟ اذا رأیت. إذا رأيت حامدا جب تم دیکھو حامد کو فاسألہ تو اس سے پوچھو ان ہے تو اس لیے پوچھنے کا میننگ آئے گا. بالکل، یہ بات آپ نے پکی یاد رکھنی ہے، مانگنے کا معنی نہیں کرنا، مانگنے کا آ ہی نہیں رہا یہاں پہ. موعد سفر کے وقت کے بارے میں. ہاں، وقت بھی ہو سکتا ہے، وعدے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، وعدے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ بلایا گیا تھا نا کوئی طور پہ، تو وہ وعدے کی جگہ تھی نا. وعدے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظرف دونوں معنی دیتا ہے. تو بعض دفعہ دونوں دے رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ صرف جگہ کا دے رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ صرف ٹائم کا دے رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ دونوں. تو وعدے کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور وعدے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ وقت ہی ہوگا کیونکہ وہ سفر سفر کا وقت ہے نا. ہاں، سفر کی جگہ. اچھا، اس کے بعد کیا جگہ بھی ہو سکتی ہے، کہاں سے ہم نے نکلنا ہے، کہاں پہ اکٹھے ہونا ہے، آگے سے کہاں جانا ہے نا. تو بعض دفعہ لوگ مل کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا فلانی جگہ آ جانا ہے، سب فلانی جگہ اکٹھے ہو جانا، وہاں سے مل کے چلیں. تو جگہ بھی ہو سکتی. اذا وجدت اچھا سمجھ آ گیا اس میں کیا کرنا ہے؟ اذا شرط ہے، اور کہاں تک شرط ہے؟ فا سے پہلے پہلے شرط ہے. اور اس کے بعد یہاں پر کیوں ہے فَاسْأَلْهُ؟ اب یہ کون سا فعل ہے بتائیں؟ فعل تو ہے لیکن کون سا فعل ہے؟ فعل امر لگ رہا امر ہے، فعل طلب امر. ہے. طلبیًا، ہے. فعلاً طلبیًا فعل امر. ان موعد السفری. سمجھ آ گیا؟ تو جی یہ آپ کا ہو گیا جواب شرط. آپ کا امر تھا، طلب تھی اس میں، اس سے اس سے پوچھنا، پوچھنا اس سے. تو دوسرا والا مفعول جو ہے نا وہ آپ کا زیر لے گیا بیچارہ، پہلا والا مفعول آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اذا وجدت المریض. اذا وجدت مریضا نائما فلا تقظہ جب تم پاؤ مریض کو نائمن سوتے ہوئے فلا تقظہ تو ہرگز نہیں اسے جگاؤ. اچھا، تو نہ تم ہاں، تو یہ آپ کا تو کز ہو، یہ مجھول ہے کیا ہے؟ تقظہ معروف مجھول. فعل ہے. مجہول. تم مجھول جگانا، اگر فائل موجود ہے تو پھر وہ آپ کا معروف فعل ہے. اگر فائل موجود نہیں ہے تو مجہول ہے. اور مجہول کے لیے 2 شرائط ہوتی ہیں، چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو. 2 شرائط ہوتی ہیں. ایک تو پیش کا آنا، ماضی کے لیے کیا ہے؟ نیچے زیر ہو. مضارع کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ پیش کا آنا اور زبر ہو. ٹھیک ہے نا؟ فُعِلَ ماضی کس پہ بنے گا؟ فُعِلَ کے وزن پہ. اور مضارع کس کا بنے گا؟ یفعلو. آلو. یفعلو. یہ بک کرتے کرتے آپ نے گرامر پکی کرنی ہے. فُعِلَ یفعلو. دیکھیں یہاں بھی پیش آ رہا ہے، یہاں بھی پیش. دوسری شرط کیا ہے؟ یہاں زیر آنی چاہیے، زیر آ رہی ہے، اور یہاں زبر آنی چاہیے، مضارع میں آ رہی ہے. بنانے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں. اور پھر آپ نے مضارع میں جا کے چپ کر کے پیش لگا دینی. ماضی میں بھی یہی ہے. ماضی میں میں نے بتایا تھا لاسٹ والے کو چھیڑنا نہیں، اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں، وہاں زیر دینی ہے. اور پھر جتنے بھی متحرک ہیں ان کے اوپر جا کے آپ نے پیش لگا دیں. ماضی اور مضارع میں یہی فرق ہے تھوڑا سا. یہاں سارے متحرک پہ پیش لگے گی، وہاں پر صرف مضارع پہ پیش لگے گی، باقیوں کو آپ نے اگنور کر دینا. ساکن کو کچھ بھی نہیں کرنا، جتنے متحرک ہوں گے انہی کو پیش دینی. تو یہ بڑے سے بڑا جو بھی باب ہوگا نا اس کا آپ پھر بنا سکتے ہیں مجہول. تو ثلاثی مجرد کے لیے تو وزن یاد کر لیں، فُعِلَ یفعلو. لیکن طریقہ بنانے کا ان میں بھی یہی ہے. صحیح ہے؟ وہی طریقہ ہے جو میں نے سٹیپس بتائے. تو اس میں بھی فا آئے گا نا، اس میں بھی فا آ رہا ہے نا. فا کہاں آ رہا ہے مجھے بتائیں؟ وہ تو لا یہ پہ آ رہا ہے. فلا ہاں، نا، فلا.
ला तो ये ला आ रहा है तो फा आ रहा है, ला आ रहा है, मजहूल की वजह से नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये तो मजहूल है भी नहीं। जी मजहूल जी, की दो शर्तें क्या होती हैं, यहाँ पे जबर होनी चाहिए, यहाँ पे पेश हो, मुजारे है ना, तो मुजारे में दो शर्तें क्या है, यहाँ पेश हो, यहाँ जबर हो। अब यहाँ जबर नहीं आ रही तो इसका मतलब है ये मारूफ है, मुजारे मारूफ है ये। अब मुजारे मारूफ की वजह से नहीं आ रही फा, या मजहूल की वजह से फा नहीं आती, बल्कि ला दाखिल हो जाए ना, लाए नाहिया, तो फिर फा दाखिल होती है। इसमें भी तलब है ना, ना तुम जगाओ उसको जब तुम पाओ मरीज को ना इमन, सोता हुआ, ठीक है। फला तू तू फिजहू, अब ये बाब इफाल से बना हुआ है। बाब इफाल में क्या होता है, तुफ इलू, तुफ इलू होता है ना, अफ अला युफ इलू, तो तुफ इलू, ला ने क्या कर दिया, उसका पेश गिरा के इसको ये दे दिया, सुकून दे दिया। ये बाब इफाल से बना हुआ है ये, और ये मारूफ फेल है, मजहूल नहीं है। मजहूल होता है यहाँ पे जुकाफ पे जबर आती, युफ अलू के वजन पे होता है, ये युफ इलू का वजन है। तो ये चीजें आपने समझनी है, ठीक है मिस ना। एक अब यहाँ बात पे बताएं। पूछूं हाँ क्लियर पूछे, करने के लिए। आप पूछ लिया करें, मिस वैसे ही पूछ लिया करें, मुझसे ना पूछा करें कि मैं सवाल पूछूं, इसमें टाइम भी लगता अच्छा है, ठीक है, आप डायरेक्टली पूछ लीजिए। जी। सिस्टर एक मिस सवाल है। जैसे पहले अमर है उसमें काम करने का ऑर्डर देना होता है और ला इलाही में काम से मना करने के लिए कहना होता है। दोनों में तो तलब है हम ना, दोनों में जी तलब है। हाँ, तो मैं यही जी दोनों में तलब है तो इसलिए हम लोग जो है ना फा दाखिल करेंगे जिस काम में तलब होगी। हम्म, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अभी और भी सही मिस। मिसालें आएंगी ना, अभी हम तमारीन भी करेंगे ना। अच्छा, अभी आप ही पढ़ लें थोड़ा सा। जी मिस। हम्म, आई आई शर्ता अय्यना, वजवाब अय्यना, युअय्यिनु, तायीन, ठीक है। उर्दू में लफ्ज बोलते हैं ना मुअय्यन, है ना, मुअय्यन बोलते हैं जी कि नहीं बोलते। जी जब मीम लग जाता है तो वो इसम फाइल बन जाता है, मुअय्यन वक़्त, मुअय्यन, है ना, जिसको मुअय्यन कर दिया गया हो। तो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है, किसको, शर्त को, और जवाब शर्त को, फीमा या ती, जो के नीचे आ रहा है। आगे पढ़े। वइज़ा कान जवाबु मुक़्तरिनन बिलफ़ाइ वज़्कुर सबब ज़ालिका। जब भी तुम क्या करो, इज़ा काना जवाबू, जवाब जो है जब भी वो मुक्तरिनन मिला हुआ हो, किससे, फा से मिला हुआ हो, तो उसका सबब भी बताना है कि क्यों मिला है ना। जैसे मैं ऊपर सबके सबब सबब बताती रही हूँ ना, कि यहाँ क्यों मिला हुआ है, यहाँ क्यों मिला हुआ है। आज इसको इंग्लिश में पढ़े, पॉइंट आउट अशर, Point out al-shart and jawab al-shart in each of the following sentences. If the jawab al-shart has fa, mention the reason. मेंशन द रीजन। तो समझ आ गई क्या قال क्या है? पढ़। जी قال تعالي हम्म, قال تعالى يا तालू, أيها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه وجوه وجوهكم वजूह, وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. अच्छा आपकी कुरान की अ, रीडिंग कैसी, आपकी कुरान की रीडिंग कैसी है? मिस जल तिलावत हाँ, जैसे करते हैं वैसे ही। नहीं, मतलब जब पढ़ती हैं आप, रवां पढ़ती हैं ऐसे कुरान में, जैसे जी कई, रवा रवा जी हाँ जी तो उसमें, रवानी पढ़ती हाँ हूँ। उसमें वो होता है, क्या कहते हैं, फ्लुएंसी होती है उसमें। जी मिस होती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ क्यों नहीं होती, मिस या मुझे कुरान लगा की, कुरान की आयत ही तो है, इसको क्यों आप अरबी मिस मुझे समझ लगा के ये पढ़ रहे? हाँ जी तो ये कुरान की आयत ही तो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम। वहां पे रुक भी सकते हैं, बीच में सांस फूल जाए, मेरा तो बहुत फूलता है। वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। तो ये तो कुरान ही है ना, इसको आप अरबी समझ के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रही थी ना, तो मैं इसलिए पूछा। मिस मुझे लगा ये बुक का है और मैंने ध्यान नहीं था कौला ताला भी लिखा हुआ है इसमें पहले शुरू में। अच्छा, अब आपको ना पूरी आयत ही नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, सूरह जुमा के भी आ रही है आगे।
जी तो अब आप देखें कि इसको हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल लेते हैं। या युवल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए जो हो। ईमान तो लाए या हैं। हरफु निदा है, अय्यु मुनादा है। मुनादा क्या बनेगा? अल्लज़ीना आमनू, किसको पुकारा जा रहा है? ये पूरा ही हरफ निदा है, ये मुनादा नहीं है। इसको मुनादा मत कहें, ये पूरा ही हरफ निदा है। कभी या आता है, कभी या युहा आता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि युहा क्यों आता है, सिर्फ या क्यों आता है, ये अब आपको पता होना चाहिए। मिस वो मुजक्कर के लिए ना। नहीं, जब अलिफ लाम वाला इसम आ हाँ। जाता है तो अय्युहा लगाते हैं। फिर यल्ला जीना तो नहीं पढ़ सकते ना, नासु तो नहीं पढ़ नहीं। सकते ना। जी जी। मुजक्कर मुअन्नस के लिए तो अलग बात है कि वो अय्यतुहा भी आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ या की बजाय अलिफ युहा लाम क्यों की। है? हाँ, ये बात। अच्छा, आमनू तो ये आपका अल्लाह जीना इसम मौसूल और सिला मिलके क्या बन गया? या का, या युहा का मुनादा। ठीक है, मुनादा ये बना है। पुकारा किसको जा रहा है? ईमान वालों को। अब आ गई ईमान वालों शर्त, को। इजा कुम तुम लसलाती, ये आपकी शर्त हो गई। इजा के साथ मिलके ये शर्त हो गई। फागसिलू, अब आपसे कुछ तलब किया जा रहा है। बस धो लो। वुजूहकुम, वुजूहकुम क्या बनेगा? मुदाफ मुदाफ मफूल इलैहि मुदाफ ला ले। वो आप मफूल छोड़ दें, अब जुमले में क्या बनेगा? मफूल बने। मफऊल। मफूल मफूल बनेगा। बने। मंसूब है ना, तो वो अब आपका, मजबूर। आपको अब पता, 8 बुक तक आके आपको पता हो जाना चाहिए कि वो मुजाफ मुजाफ इलैहि है, फेल नहीं बन रहा। फेल फाइल तो पहले आ गया ना, फेल फाइल और मफूल। मफूल आ गया, जबर के साथ आया, मुजाफ पे जबर आ जाए तो फाइल नहीं बन सकता। ठीक है, जबर मफूल ही बन। मैं वाह। वो पता नंबर उस्ताद, मैं एक, इसलिए कहती हूँ कि मुदाफ मुदाफ इलैहि, क्योंकि मेक श्योर कि ये मुदाफ मुदाफ इलैहि वजहुन इसलिए। इसम है ना, वजहुन की जम है, जी ये जी जमा मुकस्सर है। जी तो जी वजहुन जो है इसम है ना। जी तो अगर जमीर से पहले इसम आ जाए, आपको पक्का हो जाए कि ये इसम ही है, तो फिर वो हमेशा मुरक्कब इजाफी ही बनता है और कुछ नहीं बन जी सकता। जी है ना। तो ये आपको जी पता होना चाहिए कि अब ये इसम ही है, फेल नहीं है। फेल माजी होता है या मुजारे होता है या अम्र होता है, पहचाने जाते हैं ना। अब देखो ये फेल था। जी तो वो पहचाने गया ना, वो भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। मिस वो ये जो, पहले अमर होगा ना, फक्सिलू। हाँ, फेल अमर तलब है ये, ठीक है। जी। तलबी या तलब है। तो तलब था इसलिए फेल अमर था, तो फा फा आ गया। दाखिल। अच्छा, फागसिलू, बस दो लो, किस किस चीज को धोना है? नंबर एक, नंबर मुंह दो। को, अपने और मुंहों को, अपने हाथों को, वईदियकुम, हाथों को भी धो लिया। हैंड्स। इलल जी। मिराफिकी, कहाँ तक धोना है? कोनियों कोहनियों तक। तक। हम्म वो थे ना, अबू जर गफारी थे, कौन थे जो अपने ऊपर तक जाके कंधों तक धो आते थे, उनके नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि क्यामत के दिन चमक रहे होंगे। तो यहाँ मिराफिक यानी आपकी कोनियों से, कोनियां कभी भी आपकी सूखी नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह पाँव की एड़ियां अच्छी तरह मेक श्योर करें वजू टखनों करते तक। हो। हाँ, जी। टखनों तक पैर। वमसहू, और मसा करो, और या हाँ, और मसा बिरुस करो बी। बी रूसिकुम, अपने सरों को, सरों का। जी। व अर्जुलकुम, और अपने पाँव का। ठीक है ना। अब यहाँ पे पाँव का मसा है या पाँव को धोना है, ये बताएं मुझे। वैसे ये दोनों। खलाल में दोनों। आ जाएगा ना, कि उंगलियों के बीच में जो खलाल से लेके टखनों तक का धोना होता है। नहीं, ये इस पे, फक्सरू पे जाके कर रहा है ना, फक्सरू से कर रहा है ना, हाँ। ये मातूफ जो है हो रहा है। हाँ, ये वाव ये है। नंबर एक, नंबर दो, नंबर। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं? वो कहते हैं पाँव का भी मसा कर लो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, जिनको ग्रामर नहीं आती, जिनकी आती है, वो पूरे धड़ल्ले से कहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है वमसहू बिरूसिकुम वारजुलकुम। यहाँ पे ये दो चीजें, इनको धो लो और दो को मसा कर लो, हम्म। पाँव का भी मसा है। पाँव के मसे की कुछ शरायत है, पहले उनका वुजू करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर आप जुराबें पहनते हैं, वो भी आपकी जुराबों का भी एक शर्त होती है, और फिर उसके बाद फिर जाके मसा होता है। सही। सही है। तो ये तीसरी चीज है जो आपने धोनी है। वुजुआकुम ऐदियकुम वारजुलकुम, इसका तो उधर पढ़ रहा है, इलल का बेनी, कहाँ तक? टखनों तक। मसा सिर्फ सर का होगा, गर्दन का भी नहीं होगा। गर्दन का भी कई लोग ऐसे ऐसे करके गर्दन के नीचे दोनों हाथ फेर रहे होते हैं, जी। फेरे होते हैं ना। आदत बनाई हुई है, पक्की आदत, और पीछे से भी और आगे से भी। हाँ जी, एक हाथ फेरे होते छोड़ हैं। दें, अभी ये आयत पढ़ ली ना आज आपने, बिल्कुल छोड़ दें, जिसकी आदत भी है वो भी छोड़ दें, हराम है वो।
सिर्फ का आपका सर का मसा करना है, उसको अच्छी तरह करें। अब उसमें बाकी जो मसाइल है वो पता कर लेंगे, जैसे हिजाब में हो सकता है, पगड़ी में हो सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पगड़ी में भी कर लेते। ठीक है। अब इस हिजाब का क्या है, पूरा आप हिजाब कितनी मुसीबत है। या अब बाज दफा ना ऐसा होता है कि बच्चे घर से वुजू करके निकलते हैं कि हमें अब मुश्किल होगी बाद में वुजू करने की। वो गर्दन का नहीं करना होता है माशा, आपने कहा। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ गर्दन का? लिखा तो नहीं, हाँ पता नहीं, मैं किसी ने अभी बताया हाँ। था। हाँ, लेकिन हस्बैंड को भी प्यार से, तहम्मुल से, ये नहीं हिकमत से बताना है, हम्म। चिढ़ जाते हैं बाद दफा। तू जी। बड़ी आई है वहां से, सारी दुनिया कर रही सही। है और तू जो है ना। सही। और हम्म। वो क्या कहते हैं, बीवी बन माँ न बन, वो वाला जुमला हम्म। भी सुनने को मिलता है ना। सही। अभी शुक्र है मेरे हस्बैंड तो खुद ही सुन लेते हैं सारी चीजें। पूरा दौरा कुरान उनका कल खत्म हुआ है, पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फरत हाशमी के साथ जितना भी उन्होंने करवाया। रमजान में उन्होंने रोक दिया था ना बीच में। हम्म। फिर वो उन्होंने दोबारा शुरू किया रमजान के साथ, अभी खत्म किया। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो गया। तो आगे बोलिए। उस्ताद, हम्म। ये जो बेरूह सिकुम है, हम्म। ये क्या जार मजरूर मुतालिक फेर कहेंगे, या ये भी मफूलुम बिही, क्योंकि हाँ। वाव आया वाव अर्जलक। हाँ, ये था तो मफूल ही, लेकिन क्या है, मसहा के साथ बी लगाना जरूरी था ना। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से फिर जो मफूल होता है मजरूर हो जाता है। तो कहेंगे मफूल ही ना। ये बी की वजह से, तो वरना तो रूसा कुम ही हो जाता ना ये भी, जी जी है जी ना। जी। तो बी की वजह से रूसी कुम। अब लोग फिर क्या करते हैं, ये नहीं देखते ना, ये हरकत कान यहाँ पे तो जेर नहीं आ रही। हम्म। अगर यहाँ पे भी जेर आ जाती तो फिर हम पाँव का भी मसा करते, लेकिन यहाँ पे तो जबर आ रही है, तो इसका अतफ तो इसमें पड़ ही नहीं रहा, इसका अतफ तो पड़ रहा है पीछे। फगसिलू के साथ वो मफूल बन रहा है। तो ये बीच में आपका, ये ये भी टेस्ट होते हैं, लोग क्या निकालते हैं कुरान से, कुछ कुरान से ऐसे ही भटकते हैं ना, गौर नहीं करते। तो आप लोगों को इस तरह, इसी तरह अरबी इसीलिए पढ़ाई जा रही है। सूरह मायदा की आयत है, इसमें एक ही दफा मेरे ख्याल में वुजू का एक ही दफा जिक्र आया, बक तशरीह अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दी उसकी। अच्छा, अच्छा, ये आगे क्या? जबर और की वजह से ये पीछे उसके जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये अच्छा। जबर अच्छा। की वजह से इनके साथ शामिल हो रहा है। अब अच्छा। फगसिलू के हुक्म में आ रहा है। अच्छा। अच्छा। हाथ जी। भी ये फगसिलू के बाद ये आया है, और वमसहू के बाद सिर्फ ये आया, बेरूस। ये सिर्फ अलग चीज है, और ये बाकी जो है ये अलग चीज। इनका हुक्म है धोने का, और इसका मसे का हुक्म है सर का, और गर्दन का कोई जिक्र ही नहीं है। आगे क्या है, नंबर 2। قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين। अब ये बात दूसरों को भी बतानी है आपने, ठीक है, कभी कभी करे ना, तो ये शायद का हवाला देना है कि उस्ताजा, पाँव ये पे तो मसन। हमने बचपन से हम करते आए हैं कि गर्दन पे मसा करते थे। गर्दन पीछे से भी, पीछे से हाँ भी दोनों हाथ जी। में, और आगे से जी। भी पूरे बल। जी। जी, करते हैं, मैं तो करती हूँ क्योंकि हाँ, सब सब करते थे, मैं भी करती थी शायद, मुझे याद नहीं ये। है क्योंकि बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए, जब से पता लगा। हम्म। 2005-06 में मैंने तफसीर पढ़नी शुरू की थी ना। तो फिर तो जैसे उससे पहले मैं भी सिर्फ सर करती का होंगी। मसा, अच्छा सर का मसा करना वो पीछे तक फिर हम करेंगे? वो सर का तो मसा होता है ना, पानी हाथ गीले करके पीछे तक लेके जाए और वापस ले पीछे। आए, है ना, मैंने वापस। मैंने मैंने ये सुना है ना कि सर जो है ना, सर में जो है कान और सर है, गर्दन सर का हिस्सा नहीं है। हम्म। देखिए, धोने का ना वजूह में क्या है, पेशानी से लेके ठोड़ी और कानों की लौ तक जो कान होती है ना, कान, तो जी। वो कानों तक ना, यानी पूरा फेस में आ जाता है कनपटी, वजूह। कनपटी के पीछे, कनपटी तक। हाँ, जो भी है वो कनपटी। फेस में, आपको पता होना चाहिए कि फेस कहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो कहाँ से गर्दन शुरू हो रही है, तो गर्दन को तो नहीं करना कुछ भी। ठीक है, और सर का मसाज से करते हैं, वो आगे पीछे लेके जाते हैं और फिर आगे ले आते हैं। अब मर्दों का इस तरह वो आसानी से, हमारे तो बाल होते हैं ना, बाल तो जी। बंदे जी। होते हैं पीछे, मेरे तो ज्यादातर बंदे होते हैं। हम्म। मतलब क्लॉ लगा होता है ना, मैं वो यूज करती हूँ। और उसके बाद वो करने थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन करते हैं। तो आगे से आप करें, मसा करना जरूरी है, आगे करें पीछे करें, एक दफा बालों का मसा कर लें बस। तो उस्ताजा, मैंने सुना है कि जब जैसे आपने बालियां या कांटे डाले हुए या टॉप्स डाले हुए तो वो भी उतारते हैं कई लोग, मैंने ये भी देखा है। नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, आपने कानों के अंदर करना है, ये क्या है, ये बस उसमें करना है ये, अब उन पता पता सुराखों नहीं में भी कि पानी जाए। सुराख इतने बड़े बड़े हो चुके होते हैं कि पानी ऑटोमेटिक चला जाता है वहां।
हम्म, इतना कोई नहीं है, ये हम इन छोटी छोटी चीजों में पड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जी हमारी रह जाती। जी। तो मैंने तो कभी नहीं, मेरी तो हमेशा मैंने छोटी छोटी बालियां पहनी हुई और वो खुद ब खुद ही हो जाता है, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया जैसे आप कह रही हैं। तो तो बाली कानों का पूरा कर लेते हैं और पूरा अंदर से बाहर से हाथ फेर के पिछली तरफ से भी वो सारा हो जाता क्योंकि हम जाते हैं ना मस्जिद, है। तो वहां पे लोग ऐसे कर रहे होते हैं, तो फिर मुझे होता है कि ये नहीं पता नहीं अब। नहीं, कहाँ हाँ लिखा हुआ जी। बताएंगे कानों के सुराखों में भी पानी डालें, मतलब है नहीं, ये वो वाला। लिखा नहीं हुआ, वो मतलब ऐसे कहते हैं लोग, करते हैं ऐसे, पता नहीं क्यों। लोग तो यहाँ बहुत पे कुछ कोई करते चीज हैं। हाँ जी। सूखा नहीं बाकी रहे ना, तो इसके लिए जी अंगूठी अगर हाँ तंग है हाँ, अंगूठी, अगर अंगूठी अंगूठी को हिला तो के उसके हिला अंदर सकती पानी है। कर दे, ठीक है। तो पानों वो का, तो अच्छा, हाथों का खलाल बहुत जरूरी है, ठीक है। जी पैरों की उंगलियों का खलाल बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अंदर से सूखी रह सकती है ना। जी हाँ जी। जी। तो ये दो खलाल उंगलियों के, पैरों के, और ये, और बाकी जो है ये सुराख जो है ये अब उसमें क्या करें फिर, हम्म। कानों को अंदर से नहीं, कभी पीछे से खुला सारा नहीं है। गीला करना जरूरी। जी, जी। लेकिन इतना इस नहीं हो सकता, अल्लाह ताला जो है ना वो इतना नहीं पूछेंगे। आसान है ना, हमारा दीन आसान है, लोगों ने हम मुश्किल बना। नमाज छोड़ देते हैं और इन चीजों में पड़े रहते हैं बस। हाँ जी हाँ, जी। अजान सुन लेते हैं, उधर ही बैठे रहते हैं, कोई नहीं कि अजान हो गई तो उठ जाए नमाज पढ़े। सर पे दुपट्टे भी ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि नमाज भी पढ़नी है जाके। खामोश हो जाओ, अजान हो रही है, वो भी करते हैं, लेकिन उसके बाद नमाज का हमें पता ही नहीं होता, लेट होती रहती है, होती रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फौरन भागते थे, बेताल्लुक हो जाते थे फैमिली से, ठीक है ना। व इजा मरितु फहुवा यशफीनी, जब मैं बीमार हो जाता हूँ, फिर शर्त आ गया फहुवा, अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। जिसके के हुआ हुआ इसमें जमीर है ना, हम्म, जुमला इसमें है। इसलिए नो। फा दाखिल हुआ है ना। मुब्तदा है और ये खबर बन रही है, और यशफीनी जुमला फेलिया बन के खबर बन रही फेल की खबर बन गई। है तो जुमला इसमिया ही ना। जी जी। जी, तो जुमला पहले इसम इसमिया जब हाँ, आएगा तो फा लाजिम दाखिल होगी। जी और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नून जो है ना, गिरा। या या गिरी हुई है, तो मैं का जी तर्जुमा जरूर करना। जी जैसे वली यदीन नी आता है ना, कुरान में आता है कि नहीं आता, जी 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 जी। यदीन नी तो क्या, मेरा दीन, जी। तुम्हारा दीन और मेरा दीन आता है ना, वो वाली। तो नून के नीचे जेर को याद रखें। अब इसको मुझे ये बता दे कोई तजवीद वाला बैठा हुआ है कि इसको लंबा करेंगे या सिर्फ आप पढ़ेंगे, यशफीनी फहू पढ़ेंगे या यशफीनी पढ़ेंगे। हमारे नहीं, हमारी जो यशफीन पढ़ेंगे, नहीं, यशफीन। हाँ, लंबा लंबा करके करेंगे पढ़ेंगे हम लोग नहीं। को, हमारी उस्ताद ने ऐसे ही पढ़ाया है, मध्य थोड़ा आरदी लंबा कर। सुकून आ जाएगी ना, मध्य वो आरदी तो सुकून। कहती थी कि ना जब आयत खत्म हो ना तो लास्ट वर्ड को थोड़ा खींचो ताकि खूबसूरती भी आए और मायने भी पूरे हो जाए। अब वो तो हम वो खींच तो सकते ऐसे हैं, रुकेंगे ना बताती उस, थी। हाँ उसको तो हम कहते हैं ना। जी अब यहाँ पर मसला ये है ना कि फर्ज करो आपने जोड़ के पढ़ना है, फिर आप क्या करेंगे, अगली यशफी ऐसे नी जोड़, है होगा, यानी यशफीन मेरा I think साकिन मुझे करते हैं है ना ये यशफीन तो और जब मैं फत्तकून, बीमार फत्तकून नी पढ़ेंगे या नी पढ़ेंगे, फत्तकून पढ़ के खत्म कर देते हैं हम तो। फहुआ वली यशफीन। यदीन, वली यदीन पढ़ के खत्म कर देते हैं ना, वली जी यदीन नी। वदीन। हम्म सही है ना। चलिए आगे छोड़े, मैं किसी और से पूछूं। काल अल्लाह قال ताला, تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا बेई, البيع। हाँ अभी यहाँ पे देखें ना, अभी आयत खत्म हुई है ना, तो आप कैसे जी, रुकेंगी, अब मैं इसको नहीं खींच सकती जबानी ना, पढ़ेंगे अलबाई इसको खींचना तो नहीं नहीं मैं। है, लेकिन अगर साकिन नहीं तो करना है ना, जी है ना। जबानी जी, काट के और फिर हम्म, चार हरकत से बाई। हल्का सा एन की आवाज आएगी इनमें और एंड, एन की, हाँ ये हल्की सी एन की आवाज जो है ना आई बहुत परमानेंट आनी चाहिए इसमें, हाँ आनी चाहिए, और साकिन भी वरना आनी यहाँ चाहिए। पे रुक जाएगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे रुक जी गए। एग्जैक्टली मुझे जब ऐसी जगहों पर मुश्किल होती है मैं मिला के पढ़ लेती हूँ आगे, मैं रुकती नहीं वहां। मतलब जब यहाँ रुकते हैं ना, जब रुकते हैं तो लास्ट वर्ड को साकिन करते हैं। और अगर साकिन तो, उससे साकिन तो करना है, ठीक है, अलबई, जैसे यहाँ वहां पे अलबई। यशवीन नहीं, था उससे ना पहले उसको अगर इस, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या या मद्दा हो तो फिर उसको मध्य आरुज सुकून करके चार हरकत के साथ रुकते हैं। तो अल अभी बाई।
अच्छा चले। अच्छा अब इसमें क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आपका हो गया यहाँ तक हरफ निदा और मुनादा। इज़ा हरफ जी, या हरफ शर्त। निदा या लजीना। अब बराबर। इसकी शर्त क्या बनेगी? देखो कहाँ? इजा, जब इजा हम्म नूदिया बस सलाती तक, जो सलाती तक शर्त है। ये भी है ना, फी मिन यौम यौमिल जुमा। फी यौमिल ये फा जुमाअती। फा तक फा हाँ, सबबिया कहते हैं इसको, फा सबबिया। फाय राब्ता भी यही होती है, फाय सबबिया दोनों का एक ही नाम है। अच्छा ये जो है ये सबबिया है क्या, मैं ये जवाब शर्त पर आ रही नहीं। अच्छा ये मेरा दिमाग खराब है इस वक्त। फा जो है इसको कहते हैं जजाया, या जज़ाइया। जजाया, या फिर क्या है, शर्त के जवाब में आ रही है ना, तो फा जी, जजाया, या फिर इसको फा क्या कहते पहले हैं, अमर पे दाखिल हुए। एक और भी कहते हैं इसको, इसका नाम फा जजाया के अलावा भी है, जवाब शर्त पर आती है फा जजाया। एक नाम इसका और भी है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ फिर। अच्छा इज़ा नुदी अलैहिस्सलाती मिन यौमिल जुमाअती, तो ये पूरी शर्त होगी, और जवाब शर्त क्या है, फस आओ, तो क्या करो, दौड़ो। दौड़ो। दौड़ो फेले अमर है, तलब है, फेले अमर है, लामे अमर नहीं आ रहा, तलब फेले अमर है। दौड़ो इला जिक्रिल्लाही, वा वा, और क्या करो, वजरू। वजरू जो है इसका रूट वर्ड है, ये वो जो है एंड वाली वो नहीं है, अतफ वज वाली है। हाँ नहीं, अतफ वाली नहीं है ना, बता रही हूँ, अतफ वाली नहीं है। ये वजरा का मतलब है छोड़ दो, ये रूट वर्ड है। अच्छा अच्छा। ये अच्छा वो ये जम ये ये जमा जमा, किस। ये जमा की है, फाइल है, और ये क्या है, रूट वर्ड है। वजरू और छोड़ दो, छोड़ दो। अलबैया का मतलब है बेचना छोड़ दो, बेचना छोड़ दो। बेचना। अच्छा। बेचने के लिए दुकानें लगा लेते हैं ना मस्जिद में, यहाँ भी होता है, मस्जिद के बाहर आजकल आमों का बहुत ज्यादा हुआ है, आम आए हुए, तो वो बाहर लगा देते हैं, और फिर वो नमाज जब अजान हो जाए ना, यही कहा जा रहा है, ए ईमान वालो। जब भी ईमान वालों की बात हो तो कोई खास जिक्र होता है, और कोई आम जिक्र नहीं होता, उसके ऊपर अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज़ा नूदिया, अब नूदिया क्या है, ये क्या है, मजहूल है या क्या है, इसलिए बता। मजहूल। मजहूल है क्योंकि फाइल का पता नहीं। तो अब इसका फाइल क्या होगा, इज़ा नुदिया, जब भी निदा दी जाए, लिस्सलाती नमाज के लिए, मिन यौमिल जुमुआती, इसको भी सही पढ़ा करें, जुमुआ, हम जुम्मा जुम्मा। कह देते हैं हम, जुमुआ नहीं, मैं दो पेश की बात कर रही हूँ। जी जुमुआ। जी। जुमुआती फस और इला जिक्र, तो नुदी या फू इला के वजन पे है ना, फू इला, तो ये माजी मजहूल है। लास्ट में जबर आ जाए तो वो क्या होता है, माजी होता है, और यहाँ पेश जी है, यहाँ जेर है, तो इसका मतलब माजी में। निदा दी जाए, अब निदा कौन देता है, मुअज्जिन देता है ना, उसका जी। जिक्र नहीं है यहाँ पे, नमाज के लिए, मिन यौमिल जुमात। अच्छा जी, जुम्मा। वजरू, छोड़ दो, वजरा का मतलब है छोड़ दो, छोड़ दो। वजरा छोड़ दो, सही है ना। बेचना। और एक वो जई बिरा भी होता है, विज्र, बोझ, वो जई से होता है, विज्र अच्छा। होता है, बोझ होता है। कोई वाजिरतुन विज्रा उखरा, आता नहीं कुरान में, जी जी। वो छोड़ने के मानी में थोड़े, वो बोझ के मानी में। नंबर 4 आप पढ़ लें अभी, जैनब, जैनब का नाम आ जाता है, जुबैदा आगे। जुबैदा, अच्छा। आ जा। हाँ जी। नंबर 4। हम्म, इज़ा दखला हम्म, अहदकुमुल मस्जिद फलयरका रकतैनी क़ब्ल अन यजलिसा। गुड। इज़ा जब दखला, जब भी क्या हो, दाखिल हो, दाखिल हो कौन दाखिल मस्जिद। हो, है ना, एनीवन। एनीवन। एनी वन फ्रॉम ऑफ यू, ठीक है ना, तुम में से कोई एक, ठीक है, जब जी भी दाखिल हो तुम में से कोई एक मस्जिद में। अब यहाँ देखे, फी को गिरा के फिल मस्जिद दी होना चाहिए था, फी को गिरा के जबर दे दी गई है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, अच्छा। ऐसे भी होता है कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, और वो लगाना, दखला के साथ फी लगा। अब यहाँ पे क्यों बताएं फी गिराया गया, ये मैंने आपको रूल बताया हुआ है, कहीं कहीं से हाँ हम जी, क्या करते हैं, क्योंकि फी ये नहीं फिजिकल हजर कर। दाखिल हो रहे हैं ना। हाँ, कहाँ पे दाखिल फिजिकल हो रहे हैं, फिजिकल दाखिल हो रहे हैं। हाँ फिजिकल। जिस जगह फिजिकल दाखिल हुआ जा सके,
ٹھک ہے، اس کے فی تو جی وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، فی کو حذف کر دیتے ہیں، وہاں ضرورت نہیں ہوتی. جی فل یرقا، بس چاہیے کہ وہ کیا کرے. اب یہاں پہ طلب آ گئی. اب یہاں پہ جی طلب کون سی آئی ہے مجھے بتائیں. طلب تین حکم طرح سے آتی ہے نا، فعل امر اور امر، لام امر، لام امر، یہ لام لام. امر ہے. اگر میں بتاتی نہیں تو آپ کو تو نہیں ہوش تھی نا کوئی کہ لام امر آ رہا ہے جی یہاں پہ. تھی نہیں کتنے جی لوگوں کو سکون تھی، آ رہا ہے نا. کتنے لوگوں کو تھی کہ یہاں پہ لام امر آ رہا ہے. ہم نے کل ہی پڑھا ہے نا اس کا یاد تھا مجھے. یہ لی تھا. جب فا داخل ہوئے تو لام امر کی نشانی کیا ہے، وہ سکون لے لیتا ہے. سکون میں چلا فل جائے. یرقا، بس چاہیے کہ وہ رکوع کرے رکعتین، ٹھیک ہے، ٹو دو رکعتیں. اور اس کے بعد ہے قبل ان یجلسا، اس سے ٹھیک ہے، پہلے وہ بیٹھے. وہ بیٹھے. ہاں، بیٹھنے سے پہلے کیا کرے گا، آئیں یجلسا. اب آئیں یجلسا دیکھیں یہاں پہ کیا بن رہا ہے. یہ مصدر معول جو بنتا ہے نا، یہ کچھ بھی بن سکتا ہے. جو بھی نون بنتا ہے یہ بن جاتا ہے. مفعول بھی بن جاتا ہے، فاعل بھی مبتدا بھی بن جاتا ہے، خبر بھی بن جاتا ہے. یہاں پہ کیا بن رہا ہے یہ، مضاف الیہ ہاں، قبلہ کی وجہ سے نہیں. مضاف الیہ بن. اچھا ہاں. پورے یقین سے بولا کریں نا، یہ ظرف ہے، یہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں. میم ظرف میں بن کے دیکھ رہی مضاف الیہ بن رہا ہے. دراصل ظرف میں ظرف مطلب اس کے اوپر نا پیش دیکھ رہی تھی، یا اس لیے نہیں، اس لیے میں سوچ میں پڑ گئی تھی. قبلہ تو قبلہ کے اوپر نا میں پیش اور زبر کا وہ کر رہی تھی، اس پیش لیے. تو آتی نہیں ہے. پیش نہیں تب نہیں، آتی ہے جب آپ کا مضاف الیہ بیچ میں سے گر جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں، معذور تب ہو جاتا تب آتا ہے. ٹھیک ہے. ہے. جی جب زبر آتی ہے اس کا مطلب ہے اس کے جملے کا مفعول فیہ بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے. زبر زیادہ تر ظرف جو ہوتے ہیں وہ زبر ہی لیتے ہیں. آپ پیش کیوں دیکھ رہی تھی مجھے یہ بتائیں. مضاف پہ زبر زیر پیش سب چیزیں آ سکتی ہیں، جی جی. تو آپ کیوں پیش دیکھ رہی تھی. آج کے بعد آپ نے یہ والی غلطی نہیں کرنی اچھا کہ میں پیش دیکھ رہی تھی، مجھے مضاف پہ پیش نظر آئیے. روز کلاس میں بتاتی ہوں مضاف پہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں، زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہیں. یاد رہے گا ابھی، جی چاہے انشاءاللہ. وہ قبلہ ہو چاہے کچھ بھی ہو. اور قبلہ پہ تو خاص طور پہ زبر آتی ہے. جی بادا، تحتا، فوقا، جتنے بھی ظرف ہوتے ہیں ان پہ زبر ہی آتی ہے. اور وہ زبر والوں سے پہلے اگر آپ کا فعل آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جی مفعولن فیہ بنتے ہیں جملے میں. تو یہ ظرف مضاف الیہ آپ کا مفعولن بھی بن. ٹھیک ہے. جی. تو اب نمبر یہاں 5. پر فا جو ہے، یہاں پر آپ کا یہ جواب شرط شروع ہوا ہے یہاں سے، اور یہاں تک یہ جواب شرط ہو گیا. ٹھیک ہے. جی جی. اور یہ پوری شرط ہے آپ کی. ہاں جی. مسجد میں تم میں سے کوئی ایک بھی داخل ہو مسجد میں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، تحیت المسجد پڑھنے 2 رکعت. فل یرقا، رکوع کرے، رکعتینی. رکع یرکع کا مطلب کیا ہوتا ہے، 2 رکوع کرنا رکعت ہی، رکوع کر رکوع کرنا ہی ہوتا ہے نا. اور یہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے. رکوع جو ہوتا ہے نا، جب ہم گھٹنوں پہ اپنے پیر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ عاجزی کی پوری طرح رکوع کرنا چاہیے. مردوں کے لیے تو حکم ہے پورا ان کا پیالہ رکھ دیا جائے اور وہ گرے ہی نہیں. عورتوں کے لیے پھر بھی تھوڑی سی گنجائش ہے نا. جی تو لیکن مردوں کے لیے تو بالکل، یعنی پانی کا پیالہ رکھو تو وہ گرنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ پانی گر رہا ہے بیچ میں سے، پورا آپ کا صحیح ہو رہا ہے. اچھا، آگے پڑھیں. نمبر 5. نمبر 5 قال تعالی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کیا ترجمہ کریں، مجھے بتائیں، ذا شرط یہ سب بتائیں. فائز حرف کہیں ہیں نا اس کو، حرف اذا جو ہے وہ شرط ہے. شرط ہے نا. جا دیکھیں شرط جو ہوتی ہے نا، شرط کے حروف بھی ہوتے ہیں اور اسم بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو جی. یہ حروف میں سے ہے. اچھا شرط، اذا، حرف سے شرط، ہاں، حرف حرف شرط ہے. شرط. اور دیکھیں من جو جا ہے، من تو نہیں ہے، من تو حرف شرط نہیں ہے نا، من بھی شرطیہ ہوتا ہے. اب جی ان شرطیہ حرف ہے، من اسم شرط ہے، ما اسم شرط ہے. وہ جب وہ شرط بنیں گے تو ما اور من جو ہے وہ اسم ہے. اچھا. جب نفی کے معنی میں ما آتا ہے تبھی وہ رفع ہوتا ہے.
تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، اس کو آپ اس کو یہاں تک مجھے بتا دینا بس، شرط کہاں تک آ رہی ہے اور جواب شرط کہاں تک آ رہا ہے یہ بتا دیں. شرط ابھی اس میں فا تو نہیں آ رہا، لا آ رہا ہے، لا نہیں آ رہا ہے، نہیں اب یہ وہ والی مثال ہے جو میں نے ایکسیپشن بتایا تھا نا، لا کہ جب نفی ہے، آپ کا جواب شرط نفی والا جملہ ہوگا. یہ لا ناہیہ تو نہیں ہے نا، بتائیں مجھے، نفی ہے یا نہیں ناہیہ؟ نفی 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 ہے کیونکہ نون موجود ہے، جی اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے، یہ سمپل نفی ہے، لا نفی والا ہے. تو یہ جب لا نفی والا آئے گا نا، لا ناہیہ نہیں، نفی والا، تو پھر کیا ہے وہ آپ کا یہاں تک آئے گا نا، یہ آپ کا اس پہ لا فا داخل نہیں ہوگا. اچھا تو یہ شرط ہو گئی، فیضا جا اجلہم، یہ شرط ہو گئی. اب یہاں سے لے کے یہاں تک پورا وہ جواب شرط جواب ہو گیا. شرط جب آ جاتا ہے اس کا مولت کا وقت، کوئی بھی انسان ہے اس کا مولت کا وقت آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لا یستأخرون ساعتن، ساعت کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایک گھڑی. ایک گھڑی اب ایک گھڑی جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے، ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے. لا نہیں مؤخر کیا جاتا ان کو ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ ان کو اس ایک گھڑی سے پہلے، نہ آگے نہ پیچھے، بالکل صحیح اس ٹائم پہ جان نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جان نکالنے کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور کسی قوم پہ عذاب کا معنی بھی ہو سکتا ہے، اور انڈیویجولی بندے کے اوپر عذاب کا معنی. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو وہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیے جا رہے ہیں، مہلت دیے جا رہے ہیں، لیکن جب پکڑ آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں کرتے، پکڑتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ کی زمین پہ جو لوگوں کو سکون سے جینے نہیں دیتے، فساد کرتے ہیں، ان کے لیے آیت ہے. اور پھر اس میں دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس کا موت کا وقت آ جاتا. جی صحیح ہے، تو دونوں معنی ہے. اس کے بعد نمبر 6 کیا ہے؟ اذا شرب الکلب فی اناء احدکم ہم، فلیغسلہ سبعا. ہم. اب کیا ہے؟ اذا یہ بھی شریبا. تو جب ایزا حرف شرط ہے اذا اور شرطیہ یہ کہہ لیں، حرف شر اس چکر میں نہیں پڑے. ٹھیک ہے، اذا اچھا شرطیہ کہہ لیں. اور یہ کیا شرطیہ ہے، شریبا فعل ہے. شریبہ ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، اس کے بعد ماضی آتا ہے نا، سب ماضی آ رہے تھے. جی دیکھیں آگے مضارع آ گیا، آگے جو ہے وہ آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ ماضی ہے. کبھی کبھی یہاں پہ بھی مضارع آ جاتا ہے، جواب شرطی مضارع آ جاتا جی ہے، لیکن زیادہ تر اکثریت یہاں پہ ماضی کی ہے. اذا شریب الکلبو، جب کیا ہے، پی لے، پیل پیے کتا پیے یہ پی کتا، فی یہ انائی احدکم، یہاں تک شرط ہوگی پوری. فا ٹھیک آ ہے، گیا فی انائی، انائی کا کیا ہوتا ہے، یہ مضاف بن رہا ہے، پیالہ پیالے پیالے میں سے، تمہارے پیالے میں سے پی تم لے. فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، تو بس یہ کیا ہو چاہیے گیا، پس چاہیے کہ، تو کیا ہوا، لام امر آ گیا. لامی امر ٹھیک ہے، تو لام امر پہ فا داخل ہوا ہے، تو اس میں بھی طلب ہے نا، لام امر میں بھی. جی ٹھیک ہے، جی خواہش کا اظہار ہوتا ہے نا، بس چاہیے کہ دو لے اس کو اب پتہ ہے اتنی بڑی اس کے پر تحقیق ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں 6 بار دھونے سے پاک نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں نے تحقیق نہیں کی، گوروں نے کی ہے، تاکہ اب ان کو کیا پتا پاک ناپاک کا، تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جو اس کا منہ کا لعاب لگ جاتا ہے نا، وہ 6 دفعہ دھونے سے نہیں جاتا، اس کے جراثیم نہیں جاتے. 7ویں بار بھی دھو گے تب وہ جراثیم ختم ہوں گے جو اس کے کتے کے چاٹنے سے. ان کو کیا ہے، ان کو تو کتوں کو سانس لاتے ہیں اور اس کے پپیاں بھی لیتے ہیں اور وہ بھی ان کو پیار کرتے رہتے ہیں. ان کو کیا ہے پاکی ناپاکی کا. لیکن وہ جو پیچھے کرتے ہیں نا کہ ان کے قرآن میں جو باتیں آئی ہیں ان پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 بار دھونے سے اس کا لعاب کے جراثیم نہیں جاتے جب تک آپ 7ویں دفعہ نہیں دھوتے. تو ایسی تو نہیں سب ان کا آ گیا. ہم لوگ تو محاورے کے طور پہ بھی لے لیتے ہیں، 7 بار بسم اللہ پڑھ لو، 7 بار درود شریف پڑھ لو، ہم تو محاورے کے طور پہ بھی لے لیتے ہیں نا بعض دفعہ. 7 بار دھونا ہے، یہ شرط ہے اس کی پاک کرنے کی.
برتن ناپاک نہیں ہوتا، اس کو آپ مان دھو لیجیے سکتے ہیں. ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ جی کتا کسی برتن کو چاٹ جائے تو وہ ناپاک ہو گیا، اس کو پھینک دو اور پھینک اس دو. طرح، لیکن کتنی لیکن اس واضح زمانے آئے میں اس بات ہے زمانے یہ۔ میں برتن بھی تو سونے چاندی کے ہوتے تھے نا، پھینک بھی نہیں سکتے تھے، ہے ہاں، نا. ہماری تو مٹی آ گئی، پلاسٹک آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، کتنی طرح کی ایجاد ہو گئی نا. جی تو ان کے برتن جو ہوتے تھے بیچاروں کے پاس ہوتے ہی تھوڑے سے تھے. اور پھر تو ناپاک نہیں ہوتا، بس آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار دھو لیں. یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے. اچھا، اس کے بعد نمبر 7 کیا ہے؟ إذا سمعتم بالطاعون في الأرض فی فلا اردن. اردن في نکرا أرض ہے، ٹھیک ہے نا، جی نکرا ہے. أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. اب دیکھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اذا إذا سمیتم، اذا شرطیہ، سمیتم فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے، بتائیں. في الماضي ماضی ہے، بالتعاونی فی اردن. في ماريهما تو في الأرض تعاون کی بیماری پھیل جائے، اس کے بارے میں حدیث ہے، کسی زمین میں. کسی زمین میں یعنی کوئی خاص زمین نہیں ہے کہ اس زمین میں پھیلے گی تو تم نے یہاں سے نہیں نکلنا. ہر زمین میں، کسی بھی جگہ کا مطلب ہے یہاں پہ. کسی جی جگہ میں اگر تعاون تم سنو کہ تعاون ہے وہاں پر، فلا تدخلوها، تو نہ تم داخل ہو اس میں. لا یہ لا نہیں آ گیا نا ہاں، لا نہی آ گیا، ٹھیک ہے. نہیں تدخلونا تھا، نون گرا ہوا ہے، تو جی اس میں طلب کا معنی ہے، تو اب فا داخل ہوگا. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور جب واقع ہو جائے کسی جگہ میں، نہیں، جب تم واقع ہو یعنی تم ادھر رہ رہے ہو، بِأَرْضٍ کسی جگہ میں، زمین وَأَنْتُمْ بِهَا، اس حال میں کہ تم وہاں پر ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ یہاں واقع کا مطلب ہے تعاون کی طرف ہی ہوا کہ ضمیر جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس حال میں کہ تم وہاں پر ہو، بیہا فلا تخرجوا منہا، تو نہ تم نکلے اس سے. دونوں جگہ سو طلب آ نکل رہی ہے اور دونوں طرف آ رہے ہیں. دو جملے تھے نا، یہ 2 ازاش آئے تھے نا. جی جی ادھر تو بھی لا نہیں آ رہا ہے ہاں، لائن ناہی آ رہا ہے، یہاں بھی لائن ناہی آ رہا ہے، یہاں پہ بھی ازاش شرطی آ رہا ہے، یہاں پہ بھی ماضی آ رہا ہے. اور بیاردن کا مطلب کسی کوئی بھی پلیس، اینی پلیس ہو کوئی بھی سکتی ہے، پلیس ٹھیک ہے، جگہ ہو سکتی ہے، کسی بھی اور جگہ. تم مت چھوڑو اس وہاں وہ تم مت نکلو وہاں سے نہیں نکلو نہیں، وہاں سے نکلنا ہی نہیں تم نے. فلا تخرجو ہاں ہم، جی اور صحابہ اس مت حدیث پہ نکلو عمل کرتے تھے، نہیں نکلتے تھے وہاں سے. ہم، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے نہیں نکلنا. ابھی یہ جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ پہ توکل اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب اللہ کا حکم آ جائے تو جو اللہ نے حکم دیا وہ کرنا ہے. اس میں پھر آپ نہیں اللہ چاہے گا تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. جو حکم ہے وہ ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے. دیکھیں نا، جب آپ داخل ہو جائیں اور آپ کہیں نہیں اللہ پہ توکل ہے میرا، تو انشاءاللہ اگر میری زندگی ہے تو مجھے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہونا تعاون والی جگہ میں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو صحیح نہیں ہے. اللہ کا جو حکم ہے اس کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. اللہ پہ توکل کا حکم ہے لیکن اللہ کے اس حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے نا. اچھا، اذا نعس احدکم، اب یہ کیا ہے؟ جب چھینک آئے تو میں سے جی کسی ایک کو، کس میں؟ نماز. اچھا، یہ ناس چھینک نہیں ہے یہاں پہ، وہ یہ عطسا تھا، وہ وہ ہے عطسا تھا. جمائی ہے ہاں، وہ عطسا جمائی تھا نا، جمائی ہے. ہوں احدکم فی الصلاۃ فلینم، تو کیا کرے؟ بس چاہیے کہ وہ سو جائے، ورنہ وہ گر جائے گا. حتی یعلم ما یکرہ، اس کی وجہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہوں کہ اب یہاں پہ زبر کیوں آئی ہے؟ یا آدم منصوب یہ آ رہے. حتیٰ کی وجہ سے مفعول بن رہا ہے نا حتیٰ کی ان منسوخ کر مدمر رہا ہے ہے امنا. ان مدمر ان ہے اس ان لیے منصوب کر رہے ہیں، فعل پہ انا نہیں آتا ہے، جی فعل پہ ان آتا ہے. ان ان اسم آتا پہ ہے ان ما یکرہ، اسم موصول اور صلہ. اب دیکھتے ہیں، یہ ہے آپ کا حرف شرط، یہ ماضی اور یہ اس کا فاعل، ٹھیک ہے. پھر صلاتی، یہاں تک تو یہ آپ کا فعل شرط بن گیا. اور فل ینم، اب ینم میں کیوں فا آیا بتائیں؟ یہ جواب شرط ہے نا جواب شرط پہ نہیں فا اس میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس میں وہ ہے نا طلب ہے نا کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ بس چاہیے کہ وہ سو جائے، ہوں لام امر ہے،
ठीक है, लामे अमर आ रहा है, उसकी वजह से तलब आ रही है। फल या ना, बस ख्वाहिश है ना, जी ख्वाहिश, हुक्म, दरख्वास्त, तीन चीजें होती हैं। फिर अमर हो या लामे अमर हो, तीन चीजें, हुक्म, दरख्वास्त, या फिर क्या मैंने बताया, ख्वाहिश। तीन चीज, दरख्वास्त अपने से बड़ों से, छोटों को हुक्म, और ख्वाहिश गायब और मुतकल्लिम किसी को। फलियनम हत्ता अन यालमा, तो हत्ता के बाद हमने मुजारे मंसूब हो तो उसके अंदर अन छुपा होता है, और ये क्या बन जाएगा, मस्तर मोबल बन जाएगा, है ना, जी बनेगा ना। हम्म और ये जी हत्ता का जारा मजरूर हो जाएगा। मस्तर हम्म मजरूर भी बन सकता है ना, अगर पीछे हरफ जार आ रहा हो तो ये जार मजरूर बन जाएगा। इसको सिर्फ ये मत समझे कि ये हरफ जर है, ब्रैकेट में ये अन और या लमा दोनों मजरूर हो जाएंगे, जार मजरूर मुतालिक बन जाएगा इस फेल का। और ये इसम मौसूल और सिला क्या बन जाएंगे, बताएं किस चीज की कमी है। फाइल भी आ गया, मुतालिक भी आ मफूल गया, मफूल मफूल बन जाए, या नम का मफूल सो जाए, हत्ता यानी या लमा को मफूल, या लमु का मफूल, यहाँ तक कि वो जान ले, मा यकरा, यकराऊ, कि क्या क्या पढ़ रहा पढ़ रहा है? हाँ, जो कुछ भी वो पढ़ रहा है, हाँ, जान ले है। जो वो पढ़ रहा है। इसमें मौसूल जो होता है ना, क्या कमानी नहीं देता, वो जो कमानी देता है। अभी कमी जी है ना, बताएं, आपने क्या कमानी कर लिया। माँ जब इसम मौसूल बनता है, एक तो वो इसम होता है, दूसरा वो जो का लजी कमानी दे रहा होता है, इसम मौसूल कमानी दे रहा होता है। माँ शर्तिया भी होता है, हमें आगे पढ़ेंगे, माँ शर्तिया भी होता है, शर्त के लिए भी आता है, मन भी आता है, माँ भी आता है, यहाँ पे इसम मौसूल। उसके बाद नंबर 9, इज़ा उकीम साला उकीमतिस सलातु फला सलाता इल्लल मक्तूबतु। इजा उकीमत, जब उकीमत खड़ी हो जाए, जब हम्म, खड़ी हो जाए, इजा के बाद मानी क्या है, इजा, जब आ जाए, है ना, जी अस्सलातु, जब खड़ी हो जाए नमाज, फर्ज नमाज, फला सलाता, तो नहीं है कोई भी नमाज। ला कौन सा है, ला नहीं हर जगह ला नाहिया नहीं होता, ला मुजारे पे, मुजारे पे आता ला है। नफी ला ला, नफी सॉरी लाए, लाए नफी भी नहीं है। लाए नफी और लाए नाही जो होते हैं वो पहले मुजारे पे आते हैं, यहाँ तो पहले मुजारे आए ही कई नहीं। कई वो ली होता है मेरी बहन। ला ला रही बा, line of agents. लाए और ला नफी, Line of agents. ला सलाता, जब भी एक जबर वाला आए तो वो ला कौन सा होता है, ला, लाए नफी ला जिन्स होता है। ला नफी ला रईबा नहीं है, ला इलाहा में नहीं पढ़ते आप ला, जी जी हर जगह लाए नहीं, लाए नफी वो नहीं होते हैं लामे हम, उन्होंने लामु कई भी बोल दिया। लामु कई जो होता है वो ली होता है, वो ला नहीं होता। ला की अकसाम अलग लिखें और ली की अकसाम अलग लिखें, फिर समझ आएगी क्या होना है। ला कितनी किस्म के पढ़े, ली कितने किस्म के पढ़े। ली जारा भी होता है ना। अच्छा, उसके बाद ये लाम है और वो ला है, लाम और ला में फर्क करें। लाम की अकसाम लिखें, लाम की कितनी अकसाम होती है और ला की कितनी अकसाम, फर्क करें दोनों। लाम जो है वो ली है, लाम लाम है, और वो ली भी बन जाता है जब फेले अमर उसके नीचे जेर आ जाती है। ये अल्फाबेट भी तो है ना, हरूफ तहजीब में से भी तो है ना लाम। चले इंशाल्लाह इसके भी करवाएंगे आपको काम। फला सलाता इल्ला मकतूबतू, मकतूबतू क्यों आया भाई, इल्ला के बाद तो मंसूब इसम आता है, इल्ला इबलीसा। ला सलाता इल्लल मकतूबतू, जब खड़ी हो जाए नमाज, फला सलाता, तो नहीं है कोई भी नमाज, माँ सिवाय जो कि उस वक़्त फर्ज है, जो कि फर्ज कर दी गई है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, है ना, हम्म, कुतिबा का क्या मतलब होता है, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए ये गए। फर्ज की तो कर दी मकतूबा क्या होता है, जी वो चीज होती है जिसको फर्ज कर दिया गया हो, है ना। कुतिबा तो मजहूल है, लिखा और गया। हाँ,
جو فرض کر دی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. تو آپ اس وقت یہ نہیں کر سکتے کہ میں تحیۃ المسجد پڑھ رہی ہوں پہلے میں یہ ختم کر لوں پھر میں جا کے. آپ اس کو جلدی سے جلدی فنش کریں، یا اگر ٹائم کم ہے جماعت میں تو پڑھیں ہی نہیں، جلدی آئیں، پہلے 2 نفل پڑھ لیں، کوشش کریں، لیکن جیسی کھڑی ہو یہ والی نماز تو پھر. اچھا یہ شعر پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں شاید یہاں سے کریں. یہ شعر میں کرا دیتی ہوں. اذا لم تستطع شیئا، ٹھیک ہے. اگر اب دیکھیں لم آ گیا، مضارع پہ آیا ہے، اسم پہ نہیں آتے، یہ مضارع پہ آتے ہیں. مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ مجزوم کرتے ہیں. نمبر 1 مجزوم کر دیا، دوسرا اس میں نفی کا معنی زوردار نفی، اور تیسرا اس نے ماضی میں معنی کر دیا. تو اب اذا لم تستطع، جب نہ ہو استطاعت، ٹھیک ہے نا، تمہارے اندر کسی چیز کی استطاعت ہی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی فدا ہو تو چھوڑ دو اس کو، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر جس کی استطاعت ہے وہ کام کرو، اس کی طرف جاؤ. ایک تم گاڑی چلا ہی نہیں سکتے، تم اتنے ڈرپوک ہو، تو چھوڑ دو اس کو، کچھ اور کر لو، کچھ اور، اس میں ٹائم مت ضائع کرو. مثلا کوئی بھی ایک سبجیکٹ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتا، مثلا احادیث سمجھ نہیں آتی، تو آپ عربی پڑھنا شروع کر دو، آہستہ آہستہ حدیث بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. اس کو کیوں لے کے ڈائریکٹلی آپ بخاری پہ چڑھ گئے اور بخاری کو آپ حدیثیں پڑھنی شروع ہو گیا، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پہلے آپ تھوڑی تھوڑی عربی سیکھیں، مدینہ بکس پڑھیں، پھر اس کے بعد سب چیزیں سمجھو. دا دا آ کیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فدا، چھوڑ دو. دا اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا دا کا؟ فعل امر ہے نا. دال دال اینڈ اینڈ واو. واو. ہاں دال عین وہ ہوگا، وہ تو دعوت کا ہوتا ہے نا. اس کا کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ فعل امر آیا ہے نا، تو اس کے اوپر فا آئی ہے، اور یہ کیا اذا شرطیہ، اب لم تستطع شیئا فدا، یہاں پہ جواب شرط ہے. یہ ہم تو یہ سیکھ رہے ہیں نا اس وقت، یہ آپ کی شرط ہے. فدا وجاوزہ، اب یہ لفظ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ قرآن میں اتنا پڑھتے ہیں آپ، بتائیں مجھے. وجاوزہ الی ما تستطیع، یہاں پہ بھی اسم موصول یہ ہے، جاوزا ہے نا. جمعے کو جو سورت پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ آتا ہے نا، جب وہ اپنا کراس کر گئے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، ہاں اپنے جی اس مقررہ وقت جگہ سے آگے چلے گئے، انہوں نے کراس کر لیا اس کو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو. جاوزہ، جاوز کیا ہے؟ فعل امر ہے. وجاوزہ الی ما تستطیع، اس چیز کی طرف لپکو یا دوڑو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو. یہ اس کے دونوں کے اپوزٹ معنی ہے، دا اور اس کا روٹ ورڈ ڈکشنری میں دیکھنا کیا ہے اس کا روٹ ورڈ. دال اینڈ وہ تو نہیں ہو سکتا، دال این یا دو یا پکارنا ہوتا ہے. تدعو سے بنا نا، یہ تدعو نہیں، تدعو سے ہی بنا ہے، مضارع سے بنا ہو، لیکن کچھ حرف گرے ہوئے بھی ہیں نا. ناقص ہے یا اجوف ہے؟ اگر اجوف ہے تو بیچ میں واو آئے گی، ناقص ہے تو آخر میں آئے گی، اور یہ پتہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وجاوزہ، اب یہ جاوزہ کون سا باب ہے؟ یہ الف آ گیا یہاں پہ. جاوزا یجاوزو، جاوز فعل امر بنا ہے، تو جاوزو سے جاوز فعل امر بنا، با مفاعلہ باب ہے، مفعول. ٹھیک ہے. الی ما تستطیع، طرف اس چیز کی جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، اس چیز کو چھوڑ دو اور اس طرف کی طرف لپکو، دوڑو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو. اچھی بات ہے نا، یہ کتنی اچھی بات ہے یہ. یعنی ایسا کام مت کرو جو تمہیں آتا ہی نہیں. مثلا آپ کو سلائی کڑھائی نہیں آتی، آپ بیٹھ گئے سلائی کڑھائی میں ٹائم ضائع کرنے، یا آپ کی آنکھوں پرابلم ہے اور آپ سلائی کڑھائی کے کاموں میں لگے ہو، وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھیں مزید خراب ہوں گی. تو آپ ادھر آ جائیں، دوسری طرف آ جائیں، کوئی ایسا کام کریں جو کر سکتے. اب یہ کس نے کہا ہے؟ شوقی نے کہا ہے، یہ شاعر کا نام ہے. فی مد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مد میں تعریف کرتے ہو.
یہ والی الگ بات ہے, وہ اوپر والی بات الگ ہے, ٹھیک ہے. یہ شوقی والی جو بات ہے وہ یہ والی ہے. وَإِذَا رَحِمْتَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ. وَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أُمٌّ أَوْ أَبٌ, جب آپ کیا ہوتے ہیں, رحمتا, رحم فرماتے ہیں یعنی رحیم ہوتے ہیں, جب آپ رحیم ہوتے ہیں, فَأَنْتَ, تو آپ ماں ہوتے ہیں یا باپ ہوتے ہیں, ماں اور باپ کی طرح ہوتے ہیں. تو فا کہاں پر آیا بتائیے؟ دو ہی انت چیزیں. پہ آیا فعل اسم, یہ ضمیر پہ آیا نا, ضمیر فا. جمل آگے فعل طلب آ رہا ہے یا فعل جملہ اسمی آ رہا ہے, دو ہی چیزیں بتائیے نا ابھی تک. تو لازمیہ. جو جملہ اسم اسمیہ جملہ ہے, اسمیہ. یہ آپ کا مبتدا ہے اور یہ خبر ہے, اور یہ حرف بیچ میں عطف ہے, اس کا تو پیچھے پڑ رہا ہے, یعنی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں نا. تو یہ کیا بن گئی, خبر بن گئی, اور یہ آپ کا وہ جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ, اتنا کافی ہے. پھر ریکارڈنگ بہت لمبی ہو جاتی ہے, 2 گھنٹے کی مشکل ہوتی ہے. تو یہاں سے ہم شروع کریں گے. لیسن جو ہے نا میرے خیال میں نیکسٹ ٹائم ختم ہو جائے گا. تو ادخل اضافی جملتین علی یکون جوابہ خالیا من الفائی, من الفائی. تو کہہ رہے ہیں جملے لو, 2 جملے, کتنے, ادخل 2 جملے, فی جملتین, اذا کو 2 جملوں پہ داخل کرو, الا ان یکون جوابہ, کہ جواب ہو ان کا فا سے خالی. تو فا سے خالی کب ہوتا ہے بتائیں مجھے, صرف یہ بتا دیں. یوز اذا ان 2 sentences of your own without using فا in the جواب. فا سے کب کب خالی ہو جاتا ہے, جواب شرط فا سے کب خالی ہوتا ہے, بس یہ بتا دیں. یہاں پہ جب نہیں نفی نہ آیا, ہو. یہاں پر جب ایک جملے پہ نہیں آیا تھا نا, یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ نہیں آیا تھا نا فا. نیگیٹو جملہ ہو. ہاں, جملہ نافیہ ہو, ناہیہ نہیں, نافیہ. یہ جملہ نافیہ ہے, اس میں نون نہیں گرا یہاں پہ, تو یہ آپ کا لا ناہیہ نہیں ہو سکتا, یہ لا نافیہ ہے. جیسے لا یؤمنون بھی قرآن میں پڑھتے ہیں, لا یؤمنون, تو وہ لا نفی والا ہوتا ہے. میم ماضی میں نہیں آتا نا, ماضی میں. نہیں, ماضی میں تو آتا ہے, ہوتا ہی ماضی ہے. جب آپ کی شرط بھی ماضی میں ہوتی ہے, اور جواب شرط بھی مضارع وہ ہوتی ہے, ماضی میں ہوتی ہے. اب یہاں پہ مضارع کیوں آیا, کیونکہ لا نفی والا لانا تھا, تو وہ تو مضارع پہ ہی آتا ہے, ماضی پہ نہیں آتا, اس لیے مضارع آ گیا یہاں پہ. لیکن اس نفی کی وجہ سے پھر فا نہیں داخل ہوا. تو اونلی یہ 1 ایکسیپشن ہے کہ فا نہیں آتی. سمجھ آئی؟ وہ ہم نے لو لا کا پڑھا تھا نا, وہ لو لا کیا تھا, وہ لو لا حرف شرط پڑھا تھا نا, لو. اس کے جواب بھی اس کا بھی جواب جب آتا تھا نفی والا, تو اس پہ بھی ہم کیا نہیں داخل کرتے تھے, لام نہیں داخل کرتے تھے. لو حرف شرط لو جو ہوتا ہے نا, اس کے جواب پہ لام داخل ہوتا ہے. جب نافیہ ہو تو پھر لام نہیں داخل ہوتا. یہاں فا کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پر فا جو ہے وہ کب نہیں داخل ہوگا, جملہ نفی والا ہوگا. وہاں بھی نفی والا جب جملہ تھا تو لا داخل نہیں ہوا تھا. تو آئی ہوپ کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ 2 جملے ان کو بنائیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ, اور پھر آگے والے یہ والا بھی کام کریں گے, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وانتم جزاکم اللہ خیرا کثیرا, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.